Welcome to Meridia. This is your host Umar Tariq. Assalamu alaikum. So continuing with our resilience series, we have another special guest. बड़ा rarely हुआ है कि मेरे साथ कि somebody reaches out to me, him or herself directly, कि I think I have a story worth sharing. दो तीन दफा पहले हुआ है, Osama Aman was one, Zubair was one. So we have one more similar gentleman who volunteered, who reached out to me himself saying, कि I have a story that is very inspiring and would inspire many others. So here we have our special guest today, Dr. Ahmad Rehan Khan. Assalamu alaikum, Ahmad. कैसे हो आप? Walaikum salam. Thanks a lot for giving me this opportunity. Glad to have you here. तो जो लोग आपको नहीं जानते, अपना brief सा introduction दीजिए कि who you are, where you are, what are you doing right now? I'm a graduate of Services Institute of Medical Sciences. I graduated in 2012. Right now, I'm working as an assistant professor of psychiatry at Virginia Tech Carilion School of Medicine. I finished my psychiatry 4-year residency from University of North Dakota School of Medicine. And सही originally, I'm from Lahore, born and raised in Lahore. सही सही वेरी नाइस। तो अब हम आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आप मेडिकल स्कूल में आना, मेडिकल स्कूल से यहाँ तक आना, अपनी जुबानी प्लीज गो अहेड। Uh, my elder sisters, both of them, they are doctors. They were doctors. One of them actually graduated from King Edward, your alma mater, Dr. Tariq, and the other one graduated from Allama Iqbal. Uh, I was pretty good at studies. Luckily, I was that kind of student did not, who was not like that studious of a person, but my results were really good. So I was in DPS Model Town, one of the best schools in Lahore, and then from there I went on to Government College University. Uh, I did my pre-medical. So, and from there, I think that was the first kind of a setback. I thought that I was predestined to go to King Edward because of all the good marks I had in pre-medical FSC part 1 and stuff like that. But yeah, I did not do that, and I ended up in SENS, which again is a really, it's my alma mater. I love that med school. It's one of the best. But at that time, it was not ranked at number 3 in Punjab, which it is right now. सही सही। तो आपकी सिस्टर ने कई में कब से ग्रेजुएट किया था? My sister, she graduated in 2006. अच्छा ठीक है, हमसे 3 साल सीनियर थी। उन्होंने जी, कभी and आपको ये नहीं कहा कि जो आपकी फैसिनेशन है केई से, ये ओवररेटेड है? केई में जो बच्चे आते हैं और जो ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें पता लगता है कि केई में कितना रगड़ा है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इट माइट हैव बीन इन अ वे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। केई में लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। नहीं, टोटली टोटली, आई मीन शुरू से वो स्टोरीज जो जाहिर है आप लोगों ने फेस की, मैं वो सुनता आ रहा था, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड ऑल दैट। जी जी। और उसके बाद जाहिर है मेरी वाइफ भी किंग एडवर्ड से हैं, तो वो स्टोरीज काफी बार बहुत ज्यादा लोगों से सुनी। आई थिंक द होल थिंग वाज एट, जिसको कहते हैं ना कि हम वो अक्सर पाकिस्तान इंडिया में एक वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग है कि रैट रेस है, और उसमें एक वो शुरू से कह दिया जाता है जी, अच्छा जी, डीपीएस, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपने प्री मेडिकल करना है, और किंग एडवर्ड। तो हम्म एक वो जहन में एक वो स्कीमा सा, जिसको सीबीटी की हम्म अल्फाज में हम्म कहेंगे, बना हुआ था। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो थे, क्योंकि वो भी दे एंडेड अप इन किंग एडवर्ड, तो वो एक इस तरह की उस वक्त फीलिंग आई। और एक मतलब मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एक जो मेन चीज ये थी कि एक डिसअपॉइंटमेंट इन माय ओन सेल्फ, नॉट नॉट बिकॉज कि आई डिड नॉट एंड अप इन के, द डिसअपॉइंटमेंट वाज दैट आई डिड नॉट एंड अप एट द टॉप मेरिट इन पंजाब। जी। पता है क्या, हम मेरा ख्याल है जब छोटे होते हैं ना, हमारी छोटी छोटी बच्चों वाली ख्वाहिशात होती है। मेरी भी थी कि मेरे ना मैट्रिक में पोजीशन है, नहीं आई। और बड़ा मुझे लगा उस वक्त, बड़ा महसूस होता है। मैंने कहा यार, जिंदगी के क्या फायदा, सारी जिंदगी सोचा था मैट्रिक में पोजीशन आएगी। लेकिन उसके बाद मेरी एफएससी में अच्छे स्कोर आ गए, पोजीशन भी मेरे ख्याल थी, थर्ड में था बॉयज में। तो लेकिन बाद में समझे व्हाट्स द बिग डील, कि कोई इतना नोबडी केयर्स। जो जिनकी नहीं भी थी वो भी वहीं पे हैं, जिनकी थी ठीक है, हमारी स्कॉलरशिप लग गई, फेडरल स्कॉलरशिप मुझे मिली थी 5 साल। लेकिन दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, कि देखें, अगर आपकी सप्ली आती है, अगर आपको टॉप मेडिकल स्कूल में दाखला नहीं मिलता, अगर आपके स्टेक्स के
स्कोर्स कम है, किसी भी जगह पे अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, राइट? मैं भी आज अमेरिका में Absolutely. अटेंडिंग हूँ, आप भी अटेंडिंग हो, तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। तो अब मुझे फिर बताइए, फिर आपका सिम्स में सफर कैसा रहा? So Sims में मैंने जब स्टार्ट किया तो again as I mentioned I was disappointed in myself. I was in a way I was rebellious that okay I will just pass my time in Sims and I will study to an extent where I would just pass. हम्म। तो खैर I started doing that. I had a mishap in first year. मैं anatomy का एग्जाम दे रहा था, मेरा कजन और भी है और मेरा दोस्त भी था, वो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो आपको पता है एग्जाम दे रहे होते हैं कुछ मतलब एक दूसरे से सलाह मशवरा हो रहा होता है। तो वो कोई इस तरह का हो रहा था, तो वो इन्विजिलेटर ने मेरा एग्जाम मेरे से ले लिया। अब वो अच्छा। मुझे मेरा ख्याल था कि भाई मेडिकल कॉलेज इस तरह नहीं करेंगे, उसने मुझे वापस नहीं दिया, तो मेरे को 15-20 एमसीक्यू छूट गए। तो आई फेल्ड, जाहिर है 15-20, एक तो वो पेपर वैसे बड़ा मुश्किल था उस वक्त, मतलब यूएचएस वाले अजीब से पेपर्स बनाते थे। तो वो हैड अ सप्ली, तो वो मेरा बड़ा एक मतलब एट दैट टाइम इट वाज माय लोएस्ट पॉइंट के एक तरफ कहाँ से कहाँ बात जा रही थी और एक तरफ आ गए, उसके बाद जाहिर है कि सप्ली भी आ गई। और सप्ली हम्म। जिस तरह आपने कहा ना किंग एडवर्ड की तरह, मतलब सिम्स में यूएचएस के कॉलेजेस में उस तरह कॉमन नहीं होती थी। मतलब हम्म। वाइवाज में हमारे मतलब ठीक होता था, मतलब बहुत लीनियंसी भी नहीं थी, लेकिन वही फेल होता था जो वाकई फेल होना जिसका बनता था। तो लेकिन ये होता था कि रिटर्न में समझा जाता था कई कि में यार ऐसा नहीं है, रिटर्न। सॉरी टू इंटरप्ट, पर कई में ऐसा नहीं है, कई में बड़े हाँ लोगों को होते एग्जैक्टली हैं। exactly, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों वाला हिसाब नहीं था हमारा। जी जी। और क्योंकि हमारे वो ये था कि बड़ा मतलब क्योंकि एक किस्म का वो न्यूयॉर्क कॉलेज था, तो बड़ा अच्छा पढ़ाते भी थे। और वो ज्यादातर वो लोग वही थे जो किंग एडवर्ड और इल्हामा इकबाल से महमूद यास साहब टाइप के आए हुए थे, जो मतलब बड़े सीजन लोग थे। जी। फैसल मसूद साहब ज़ाहिर प्रिंसिपल थे, तो वो बड़े बड़े अच्छे सीजन लोग थे। तो वो बड़ा मुझे मतलब हुआ कि यार मतलब एक तो पहले ही कुछ नहीं काम इतना अच्छा चल रहा था, ऊपर से अब सप्ली भी आ गई। तो दैट वाज आई थिंक माय टर्निंग पॉइंट इन मेनी वेज, ये मे बी फर्स्ट ईयर की मतलब थी या सेकंड ईयर की सप्ली? फर्स्ट ईयर। अच्छा। लेकिन ना फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पहला ईयर में एग्जाम मेरी भी मैंने। सप्ली आई थी, फर्स्ट ईयर में मेरी फिजियो में सप्ली आई थी, उसकी तो मैंने पूरी कहानी बताई हुई है। वो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे, ही डिडंट इट्स एन ओपन फैक्ट्स, आपको बताया कि ही डजंट रियली लाइक के जो लोग अमेरिका से आते थे ये वो। जी तो जी। मुझे वो कहीं मिले थे रेल कार में आते हुए, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्यों नहीं हो मतलब तुमने लास्ट टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारा तो परसों एग्जाम था। तो मैंने बताया कि आई हैड अ ग्रीन कार्ड, आई हैड टू गो आउट ऑफ कंट्री। तो उन्होंने मेरा रोल नंबर पूछा। फिर जब मैं अच्छा। फर्स्ट प्रॉफ के पार्ट वन में जब फर्स्ट ईयर में पहुंचा था, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था जो कि आउट ऑफ कोर्स था, ना हमारे रीनल था ना सीएनएस था, एंड ही आस्क्ड इन व्हिच कैरस ऑफ द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स लोकेटेड। तो मैंने कहा सर सीएनएस और रीनल तो कोर्स में नहीं था दोनों फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के कोर्स में। उन्होंने मुझे 0 नंबर दिया, ओ। और मेरी फिजियो में सप्ली आई। लेकिन अब उस वक्त बड़ा फील हुआ था यार, बहुत ज्यादा। आई थिंक मतलब एग्जैक्टली। इफ आई कंसिडर के लाइफ के जो 2-3 बड़े impactful events that shaped my personality, it was one of those. लेकिन looking back, it wasn't worth, like उसकी कोई टेंशन बनती नहीं थी। लेकिन यही होता है ना कि आपको एक वॉट टेस्ट, एक स्टेज, सब स्टेज, हाँ जी। वो बहुत फील होता है उस वक्त। हाँ जी, तो बस इसी तरह मुझे हुआ। और जाहिर है उस वक्त ये था क्योंकि सिम्स वर सेल्फ फाइनेंस। जाहिर जी। है इस वक्त तो अब आज के हिसाब से देखें तो पर ईयर 2-2.5 लाख फीस इतनी तो शायद मतलब बहुत कम कंसिडर की जाती है। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा फील होता था कि यार अगर मैं सप्ली में भी फेल हो गया तो वो दो हम्म। ढाई लाख मेरे वालिद साहब को दोबारा भरनी पड़ेगी। तो वो हम्म। मुझे एक बड़ी गिल्ट फील होता था। तो खैर मतलब आए वहां से टर्न अराउंड लिया मैंने, मतलब हम्म। एनाटमी को बड़ा अच्छा तरीके से पढ़ने की कोशिश की। और मतलब मैं सप्ली में जो मेरा रिटर्न था उसमें हमारी 80 में डिस्टिंक्शन होती है, ज़ाहिर है सप्ली में डिस्टिंक्शन तो वो नहीं देंगे, बट आई हैड 84 इन दैट आउट ऑफ 100, तो वो बड़ा अच्छा अच्छा। मतलब हो गया। तो वहां से मुझे एटलीस्ट ये हो गया कि अब इस तरह नहीं होगा कि मतलब पढ़ो भी ना और जाहिर है कारमा भी होता है कि आपने इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं फिर आपका वो भी ले लिया। तो वहां से फिर बड़ा अच्छा मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट थी और बड़ा अच्छा मतलब कुछ बहुत अच्छे दोस्त, कुछ लोग पहले मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे और जो वहां भी आ गए और बहुत से अच्छे और दोस्त बड़े अच्छे बने। और फिर उसमें ये था कि हमें जो सबसे ज्यादा मुझे सिम्स में चीज अच्छी लगती थी और अच्छा लगा कि हमारे जब क्लिनिकल शुरू हुए ना तो उसमें जो वार्ड्स का एटमोसफेयर था दैट वाज रियली गुड। जो पीजीज थे, जो एसआर्स थे, इवन प्रोफेसर्स, दे वर वेरी वेरी विलिंग टू टीच। और वो मतलब एज कम्पेयर टू अगेन हमने जो अक्सर जगह सुना होता था
तो उससे डिफरेंट लगा। और बड़ा एक वो मतलब बहुत अच्छा फिर उसके बाद टाइम गुजरना शुरू हो गया सिम्स पे। सही सही। फिर मेडिकल स्कूल आई एम अज्यूमिंग आपका अच्छी तरह हो गया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद का सफर बताइए, मेडिकल स्कूल से लेके अब तक का। हाँ बस उसके बाद बहन मेरी आर्मी में इम्यूनोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, और मतलब वो बहनोई माशाल्लाह। आर्मी में थे तो वहाँ चली गई थी। आ, हम्म। तो दूसरी जो बहन थी वो इधर आ गई, उनकी मेरे कजन से शादी हो गई। तो बस वो यहाँ से था कि यार वो भी आ गई हैं, तो एक मुझे शुरू से था कि यार एक इंटरेस्ट डेवलप मुझे हो गया था न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री दोनों में। तो मुझे इतना देख के वार्ड्स वगैरह का अंदाजा हो गया था कि यहाँ पाकिस्तान में उस तरह की एक्सेलेंस नहीं है ट्रेनिंग में। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड बन गया था कि यार यूके या यूएस या इवन ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों से बात शुरू होनी, कुछ किंग एडवर्ड के दोस्त थे और इधर उधर कॉलेजेस के, तो उन्होंने एक मिल के बनाया प्रोग्राम कि चलो यार स्टेप्स की तैयारी शुरू करते हैं। अ, उसमें लेकिन ये था कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता था कि मैं घर बैठ जाऊं और बस हाउस जॉब भी ना करूं या हाउस जॉब करके घर बैठूं और तैयारी करूं। आई फेल्ट लाइक के मतलब एक तो मुझे होता था कि यार चलो कुछ ना कुछ पैसे भी मजीद आते रहे, और दूसरा मुझे फील होता था कि यार डॉक्टर बन के भी घर अगर बैठ के तैयारी खाली करनी तो फिर फायदा नहीं। तो मैंने खैर हाउस हम्म जॉब भी भरपूर की हर चीज में, मतलब बड़ी अच्छी बहुत अच्छा टाइम हाउस जॉब में गुजरा, बड़ी अच्छी लर्निंग। उसके बाद एक आध जगह मेडिकल ऑफिसर में साथ साथ तैयारी करता रहा, फिर मैं बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेटरशिप की शालामार मेडिकल कॉलेज में जॉब शुरू कर दी। उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ, कम्युनिटी मेडिसिन में थी और वहाँ हमारे प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही न्यू कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ दोस्त भी हम्म साथ थे मेरे। तो वहाँ हम्म। फिर हमने उसको प्रॉपर पुश किया और एग्जाम्स मतलब देने शुरू किए। दोस्त क्योंकि एक हमेशा से एक अच्छी चीज थी जर्नी में कि आई वॉजेंट अलोन। सही। और आई थिंक ये मेरा मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स आई हैव हैड इसके हमेशा से इन हम्म। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द जर्नी आई वॉजेंट अलोन, और that really helped. Uh, During that time, I met my now wife, और उसके बाद she also became part of all sorts of journeys. ना सिर्फ सही। लाइफ की जर्नी बल्कि स्टेप्स की जर्नी में भी पहले से उसका भी इंटरेस्ट था। तो वो बड़ा अच्छा हुआ। और उसी तरह मतलब स्टेप्स वगैरह किए। कोई बात कि शायद स्टेप वन में क्योंकि इतनी अच्छी बेसिक्स पढ़ी नहीं थी उस वक्त, शौक नहीं होता था, तो स्टेप वन में कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं है। लेकिन वो इस तरह डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी क्योंकि वो अंदाजा था कि इतना ही 19-20 के फर्क के साथ आना है। सीके में कितना था स्कोर कि था? अच्छा, और वो इफ यू इम्प्रूव डोंट हो माइंड मी गया। आस्किंग, कितना स्कोर था आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 सीखे में? मेरा हाँ जी, मेरा 226 स्टेप वन में था और हम्म 240 मेरा स्टेप टू सीके में था। तो उस वक्त का ये था कि मुझे इतने की ऑलमोस्ट टू 25-30 की ही उम्मीद वन में थी, और टू में भी ऑलमोस्ट इतने की थी, वो आ गया था। क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे इंसान अपनी लिमिटेशन पहचान लेता है, तो मुझे उसमें ये दादा हो गया था कि अगर मैं बहुत भी तैयारी कर लूंगा तो मेरा दोनों स्टेप्स में 240 से ऊपर तो शायद ना आए। तो हम्म। वो जितनी थी तैयारी एक पीक पे आके बस दे दिया एग्जाम। जिस तरह बताया न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री में था इंटरेस्ट, तो आगे इधर वीज़ा वगैरह अप्लाई किया सीएस की बेस पे। नाम उनको मेरा पसंद नहीं था, शक्ल नहीं थी, क्या था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहरबानी करके देना शुरू किया, लेकिन दिया सिर्फ सिंगल एंट्री। और फिर उसके बाद जब दोबारा गए तो उन्होंने मल्टीपल एंट्री 1 साल का दे दिया। तो किया पहले मैं न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री में अप्लाई, लेकिन ऑनेस्टली उमर भाई हुआ ये कि उस वक्त ऐसा मुझे महसूस हुआ कि गाइडेंस की बड़ी ओवरऑल कमी है, और उसमें जाहिर है मेरा अपना कसूर बहुत ज़्यादा था। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप किसी की जो ऑनेस्ट ओपिनियन होती है उसको सुनना नहीं चाह रहे होते, तो आप ऐसे हम्म लोगों से फिर ज़्यादा राब्ता करते हैं जो आपको आपके मतलब की बात है जो आप करना चाह रहे हैं ना, वही वो आपको बात बता दे तो आप कहेंगे जी यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त है। तो हालांकि हम्म। अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा वहाँ न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री में। लेकिन बस वो कुछ गाइडेंस की इस तरह कमी थी कि मतलब बन नहीं सका। मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने अप्लाई भी किया, लेकिन पहली बार बल्कि शी हैड मोर कॉल्स देन मी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ही मैच नहीं हुए। तो वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला था क्योंकि मुझे अपना तो मैच के दौरान अंदाजा हो गया था कि शायद इस साल ना हो, मतलब चांस पे था। लेकिन वाइफ का आई वाज लाइक 80-90% श्योर कि हो जाएगा, चलो एक का हो जाएगा तो आगे कर लेंगे। तो वो बड़ा फिर हुआ क्योंकि फाइनेंशियल भी थोड़ा सा मतलब जाहिर है था कि अब यहाँ आए, एक अपार्टमेंट लेके रहे हम, तो वो काफी ज्यादा खर्चा हो गया, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना ज्यादा। और बहुत लोगों ने हेल्प भी की, ओक्लाहोमा सिटी में लोगों ने
आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमान जुबैर। उन्होंने मुझे अपनी कार दे दी। उन्होंने कहा यार तुम अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, उनके पास एक्स्ट्रा एक कार थी, उन्होंने मुझे अपनी कार, मुझे इंश्योरेंस में अपनी डाल दिया। मतलब लोगों ने बहुत हेल्प की, लेकिन बहरहाल वो हमारा नहीं गुजर सका। अब ये हुआ कि पैसे खत्म हो गए, वापस आ गए। अब ये था कि पार्ट वन भी दोनों का पास था, लेकिन एक्सपायर्ड, मतलब एक्सपायर भी हो जाना था कुछ अरसे में, ज़ाहिर है आगे जाके। तो वाइफ ने ये भी कहा कि अच्छा यार यूके का सोच लेते हैं या पाकिस्तान में ही देख लेते हैं। तो मुझे था कि मतलब जहाँ इतनी मेहनत की है, और मतलब मुझे वही अपना सप्ली वाला टाइम याद आया कि उस वक्त भी बड़ा मुश्किल मुझे लगता था टाइम, बट वी बाउंस बैक। तो मैंने कहा कि कर लेते हैं कोशिश, बल्कि मैंने उसको फिर यही कहा कि यू आर फ्रॉम किंग एडवर्ड, तुम्हारे ज़्यादा कनेक्शन हो सकते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि एक बंदा ही जा सकता है, तो तुम चली जाओ, आई कैन वेट। लेकिन उसने फिर कहा नहीं कि मैं जाऊँ, मतलब शी सेक्रीफाइस दैट, तो वो अपनी जॉब उसने कंटिन्यू की। मैं आ गया। उसके बाद बड़ा अच्छा, मतलब मुझे फिर मैंने टारगेटेड गाइडेंस लोगों से लेनी शुरू की। और हर मेडिकल कॉलेज के लोग, चाहे वो किंग एडवर्ड के, उलामा इकबाल के हों, अपने सिम्स के हों, आगा खान के, हालांकि आगा खान के लोगों के बारे में अक्सर आप सुनते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा, जो आगा खान से नहीं, जिनका ताल्लुक उनको नहीं करते, बट आई हैड गुड फॉर्चून के बड़े अच्छे लोग मिले। अच्छा, आई डोंट अ, नो, आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरा तो आगा खान के काफी लोगों ने काफी हेल्प की, मतलब आई जेन्युइनली फील के दे वर ऑल वेरी गुड। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, टू ईच हिज ओन, राइट? कुछ लोग होंगे जिनका बुरा हाँ जी। एक्सपीरियंस रहा होगा। और ऑनेस्टली बहुत ज्यादा आगा खान के लोगों से रब्ता था भी नहीं। तो उसको शायद ये कहना चाहिए कि बहुत कम लोगों से था, और जिनसे था उन्होंने कर दी, ये आपकी मतलब इस तरह कहना चाहिए, क्योंकि शायद आगा खान के उस तरह, जिस तरह किंग एडवर्ड डॉ वगैरह के इतने ज्यादा शायद हो भी ना। हम्म। तो खैर, अब उस जब वो जर्नी शुरू हुई तो उसमें बड़ी मतलब थोड़ी सी परेशानियां भी ज़ाहिर आई। नई नई शादी थी, दूर भी रह रहे थे। फिर फाइनेंस, जो फाइनेंशियल थी वो कंडीशन बड़ी मतलब टाइट फील होती थी। मतलब बाज़ औक़ात इस तरह भी फील होता था कि यार चलो सब छोड़ के आ जाओ, पता नहीं मतलब स्कोर्स तो वही हैं, सीवी में कितना का ऐड हो जाएगा, और मतलब क्या कर लोगे, मैक्सिमम क्या कर लोगे। खैर, बस वो एक अजीब सी, मतलब मेरी वाइफ अक्सर मुझे छेड़ती है कि शायद कोई फूल्स पैराडाइज था, कोई हल्की सी हाइपोमेनिया में मैं होता था कॉन्स्टेंटली, कि मुझे लगता था कि हो जाएगा या जो भी था। पर मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग आती थी कि यार इस बार मैं कुछ करूंगा ना तो शायद हो जाए, या एटलीस्ट मुझे ये होता था कि मैं एक बार टारगेटेड प्रॉपर प्लानिंग से मैच अप्लाई तो करूं, मतलब एटलीस्ट हम्म। एक फेयर चांस तो मिले। मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मेरी अपनी ही गलती की वजह से जो पिछला चांस था वो इतना फेयर नहीं था, मतलब गलती मेरी ही थी, लेकिन वो प्रॉपर डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने साइकाइट्री में, आपको आज से 6 साल पहले भी रोटेशन मिलना उतना ही मुश्किल था जितना आज है। तो हम लोग कुछ दोस्त मिलके, 3-4 दोस्त, एक जगह ब्रुकलिन में छोटी सी जगह फ्लैटबुश में रह रहे थे, जो कि बड़ा मतलब डेंजरस एरिया भी कंसिडर होता है। लेकिन हम लोग अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छी खैर खैरियत से रह रहे थे। तो मैं क्या करता था कि सुबह निकलता था कोट पहन के, और हम्म। हर साइकाइट्री ब्रुकलिन में तो आपको पता है इतने ज़्यादा है, क्लिनिक में चला जाता था कि जी आप मुझे रोटेशन दे दें। तो कभी कोई कोई कहानी सुना के दौड़ा देता था, कभी कुछ करता था। तो मीनवाइल मुझे कुछ इंटरनल मेडिसिन की रोटेशंस बड़ी अच्छी मिल गई। तो मैंने कहा चले मैं अब कुछ करूं तो सही ना। तो वहां से करते करते, कनेक्शंस करते करते, मैं एक जगह कोनी आइलैंड में आया। तो वहाँ एक पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट थे जो अच्छे एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट से थे। तो एक रेफरेंस ढूंढा, उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे कहा जी अब मिलने आ जाओ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार तो फाइनली कुछ काम बन गया। तो खैर मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने मुझे मतलब बड़े प्यार से बिठाया। उन्होंने कहा जी बेटा ऑब्जर्वरशिप तो कोई नहीं। तो मैंने कहा सर मतलब आपने मिलने भी बुला लिया। कहते हैं यार यहाँ देसी लोग हैं, तुम्हारे सामने तो बोलेंगे कुछ नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस है मेरी। तो कहते मैं तुम्हें ना एक बंदे का देता हूँ, उसके पास चले जाओ। मैंने कहा यार आप मुझे दे नहीं रहे तो आपके कहने पे वो बंदा क्यों देगा। तो मैं काफी मतलब हुआ, और इसी तरह के एक दो और भी हुए। मुझे एक और रेफरेंस से भी एक बंदे ने मिलने बुलाया, तो काफी मतलब वो हो गया कि यार करनी साइक है, ऑब्जर्वरशिप मेडिसिन में ही मिल रही हैं। हम्म। आ, फिर ये हुआ कि जिस तरह फेसबुक पे आप हो रहे होते हो, जिस तरह अब तो खैर बहुत एक्टिव हैं लोग, उस वक्त नहीं होता था। इसी तरह किसी से, रैंडम लोगों से पूछ के, किसी ने कहा जी कि एक जगह किंग्स काउंटी में सुनी डाउन स्टेट में वो साइक की देते हैं एक्सटर्नशिप। तो हमने कहा यार मतलब हर बंदा नई बात बताता। खैर हम उस वक्त ज़ाहिर है वैसे ही फिर रहे होते थे, कभी पैदल कभी कहीं। तो हम लोग पहुंच गए। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट वाज द मेन थिंग विच हैड, क्योंकि वो किंग्स काउंटी का नाम इतना बड़ा था कि वो खाली नाम लगना ही सीवी के साथ
बड़ा मुबारक साबित हुआ। पर्सनल स्टेटमेंट और सीवी में बहुत ज्यादा एफर्ट की, और वो 4 इंटरव्यूज पहले साल से मेरे 20 पे चले गए। और ये अच्छा, एक बड़ा माशाल्लाह। मतलब, मैं लोगों को ये अक्सर लोगों को मैं ये चीज बताता हूँ, सीवी वही मतलब स्कोर्स वही थे, स्टेप 3 में पहली बार ही दे चुका था, हम्म, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मजीद पीछे हो गया, वीजा स्टेटस भी वही था। लेकिन जो ये जंप लगी वो सिर्फ इस वजह से लगी थी कि उसमें गाइडेंस का और जो डायरेक्शनल एफर्ट्स थी उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो जब इंटरव्यू आना शुरू हुए, क्योंकि पहले तो मेरी वाइफ को मैं हमेशा अभी भी छेड़ता हूँ कि भाई उसको था कि ये इसको एक बार शौक पूरा करने तो आ जाएगा वापस। लेकिन जब इंटरव्यूज आना शुरू हुए ना, 4 3 4 5 आ गए ना, तो फिर उसको हुआ कि यार लगता है कुछ काम बन रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा सीजन वगैरह गया। तो अभी वो चल ही रहा था, तो उस वक्त आपको शायद याद हो कि वो ट्रम्प साहब आ गए थे, तो वो हम्म, एक बड़ा सुनते थे कि पाकिस्तान वो लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हम्म, वो एक बड़ा डर बन गया था, वो मुझे फिर सुन के हो गया कि यार ये तो भाई काम सारा कुछ करके भी खराब ना हो जाए। खैर एनी हाउ किया, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मैच हो गए। पहली चॉइस पे मैं अपनी मैच नहीं हुआ, विद इन टॉप 4 हो गया। और वो भी एट द एंड ऑफ द डे पता यही चला था कि वो पहली में भी हो जाना था, लेकिन वो वीजे का इशू था उस वक्त, वो दे वर स्केर्ड, तो वो स्पॉन्सर नहीं कर सके थे वीजा। तो खैर जब मैं J1 के लिए गया, तो इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कुछ तरह मतलब क्वेश्चन आंसर काफी मेरे से, क्योंकि मेरी स्टेज 5 5 मंथ्स के थे, हम्म, और जाहिर है 6 मंथ की एंट्री होती थी, तो आप कोशिश होती थी कि उसको मैक्सिमम यूज किया जाए। तो ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उसने कहा जी आपने हम्म, क्या किया, ये मैंने उसको बताया सारा। तो खैर काफी देर के बाद उसने कहा जी ठीक है मैंने आपको वीजा दे दिया। उसने मेरा वो DS 120, DS 2019 होता है J1 का, उसने साइन कर दिया। अच्छा, अब मेरे साथ के लोगों का वीजा आ गया, 2 दिनों में आ गया, मेरा आए कोई ना। मैंने कहा ये मतलब मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था, हालांकि मुझे 3 बार डिफरेंट B1 B2 मिल चुका था। खैर 8 10 दिन गुजरे, आ गया, मतलब 8 10 दिन गुजरे आ गया। अच्छा। हाँ, मुझे मेरी अपना वालों से बात हुई, तो उन्होंने मुझे शुरू में उसको कहा यार 8 10 दिन में अगर तुम्हारा आ गया, ना आया तो हमें बताना। तो वो आ गया उतनी देर में। तो मुझे बड़ा मतलब मैं बड़ा लकी हुआ, फील किया ठीक है आ गया। तो बड़ा अच्छा रहा, हम लोग आ गए। नेक्स्ट ईयर मेरी वाइफ को भी मिल गई। मतलब बहुत, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा, वैसे तो आप कहते हैं जी फार्गो में इतनी ठंड में चले गए, लेकिन वो एज अ साइक में जो मुझे रेजिडेंसी प्रोग्राम चाहिए था उसमें सारी चीजें थी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मेरी भाभी को वाइफ भी वहीं को, पे मिली थी? हाँ जी वाइफ को, और उन्होंने बगैर मेरे कहे, लिटरली आई डिड नॉट इवन हैव टू रिक्वेस्ट देम कि आप उसको, उनको पता था कि इसने अप्लाई करना है। वो स्ट्रॉन्ग लोकल टाइज को इतना देखते थे। और हालांकि हम्म, उस वक्त से उनके प्रोग्राम्स में AMGs आते थे, और अब तो खैर ऑलमोस्ट 100% AMG हो गया है वो। तो हम्म, ये भी नहीं था कि कोई जाता नहीं था। तो वो बड़ा अच्छा टाइम गुजरने लगा। फिर ये हुआ कि वाइफ ने मेरी EAD पे स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो J2 पे थी। तो हमने कहा यार चलो मेरा तो वेवर होगा होगा, वाइफ का उस पर ही रखते हैं, वो काम सिलसिला ठीक होगा। तो वो मसला फिर यहाँ हुआ शुरू कि उसका जब EAD रिन्यू होता है ना, तो वो फंस गया। वो उसका फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, वो EAD नहीं आ रहा। वो उनसे पूछते थे तो वो आपको पता है कि बताते तो कुछ भी नहीं है। हम्म, अब मुझे प्रोग्राम वालों ने कहा भाई फिर तुम वाइफ को कहो पाकिस्तान चली जाए, वहां से अपना J1 मतलब J1 लगवा ले। तो मैंने कहा जी ठीक है। हम लोग चले गए पाकिस्तान, हम लोग बड़ी खुशी से, और उस वक्त मीनवाइल मेरी माशाल्लाह एक बेटी भी पैदा हो गई थी। तो हम माशाल्लाह। लोग खुश हुए कि हमने कहा जी आ जाते हैं। तो हम लोग गए, पाकिस्तान आ गए। बड़े हम, बेटी माशाल्लाह US सिटीजन थी, तो छोटी थी, उसको भी इंटरव्यू के लिए ले गए। बड़े मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड में मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कुछ इशू होगा। और बड़ा, ही वॉज अ वेरी प्लेजेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट वीजा ऑफिसर्स आई हैव एवर सी मेट। जी। उसने DS साइन किया, उसने कहा जी ठीक है आपका अप्रूव हो गया, 2 दिन में आपका आ जाएगा। हम बड़े खुश थे, हम इस्लामाबाद में सैर वगैरह की, ये सब कुछ किया। मैं घर आ गया, जब सुबह उठा तो मुझे एक ईमेल आई कि जी आपका हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया। एट दैट टाइम मुझे बहुत मतलब आपका या भाभी का वीजा, या दोनों का? मेरा, उसका नहीं, उसका आ गया। अच्छा। उसका आ गया मेरा डाल दिया। उन्होंने वो एक, आपको पता है, एक ईमेल भेजते हैं। खैर मैंने रिप्लाई किया, मेरा ख्याल था 1 2 दिन में आ जाएगा, मतलब जाहिर है वो सिलसिला था। मुझे उस वक्त क्योंकि हाथ नहीं लगे हुए थे प्रोसेसिंग के, तो मैंने कहा ठीक है। खैर करते रहे, 3 4 5 दिन गुजरे, 7 दिन गुजरे। अब जब 2 2 हफ्ते गुजर गए तो कुछ जाने का भी टाइम करीब आना शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा भाई ये तो इसी तरह ही होता है, 3 क्या 6 भी महीने लग सकते हैं।
तो खैर उसके बाद फिर अब जाहिर है वाइफ ने तो जाना ही जाना था, उसकी वो अपनी टिकट पे छोटी बेटी को लेके वापस चली गई। बेटी को भी उसने कहा जी कि मैं अब मतलब अकेली जाने से बेहतर है उसको ले जाऊं, डे केयर तो वो जाती थी। मैंने कहा जी ठीक है, वो ले गई। मेरा ख्याल था कि वो जाएंगे पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। वो हफ्ते गुजरे, महीने हो गए, और 3 महीने गुजर गए। वी डिड एवरीथिंग, सेनेटर्स ने लिखा, मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर ने लिखा, बल्कि और लिटरली वो वहाँ ऐसा हो रहा था कि साइक की, आपको पता है कि नीड तो अब इतनी है, पहले भी बहुत थी, और खास तौर पे अपर मिडवेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा थी। तो लिटरली ऐसा हुआ कि मेरे कुछ जो क्लिनिक के पेशेंट्स थे, दे एंडेड अप इन ईआर। क्योंकि जब आप उनको एक रेगुलर केयर, और इस वजह से नहीं कि वो मैं उनको देख रहा था, वो कोई भी उनका रेगुलर प्रोवाइडर उनको अगर मंथ में एक बार देख रहा है, वो नहीं, क्योंकि इतना मतलब मसाइल होते हैं। तो मैंने ये सारी, जैसे जैसे मुझे चीजें पता चलती थी मैं एम्बेसी को लिखता था, लेकिन उनका आपको पता है कि वो होता नहीं। खैर कर कुरा के बड़ी मतलब करके कुछ 3 मंथ्स बाद मेरा आया। लेकिन वो 3 मंथ्स बड़े मुश्किल इस सेंस में भी गुजरे कि एक तो जाहिर है मतलब बेटी छोटी थी, उसके बगैर भी उसने चलना पीछे से शुरू कर दिया। सो आई मिस्ड ऑल दैट। और फाइनेंशियली भी जाहिर है, आपको पता है कि मतलब एक बार आप एक सर्टेन लाइफस्टाइल के हो जाते हैं, तो 3 महीने में से पेट तो शायद 15-20 दिन ही थी। तो वो भी मतलब काफी थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस आया, और मतलब काफी। फिर बीच में मेरी जो सबसे बड़ा इशू हुआ, मेरी बेटी की नैरो ईयर कैनाल थी, उसको ईयर ट्यूब्स डली हुई थी। तो जब वो पाकिस्तान आई थी, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उस वक्त तो उसको एंटीबायोटिक दी, वो ठीक हो गई। जब वो वापस गई ना, तो उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। तो दे रिकमेंडेड सर्जरी, वही जो वो करते हैं जीए के अंडर पीडियाट्रिक ईएनटी वाला। अब मेरी वाइफ मजीद बड़ी परेशान हो गई कि मैं भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी सर्जरी करनी भी जरूरी है। तो वो इट वाज अ वेरी वेरी टाइम ऑफ इमोशनल टर्मोइल फॉर मी, के मतलब मैं उनको रिकॉर्ड्स भेजता था एम्बेसी वालों को। उनका एक ही जो जेनेरिक रिस्पांस है, वो चाहे आप उनको 10 पेजों की ईमेल लिख दो, चाहे एक लाइन लिख दो, चाहे मिस कॉल मार दो, उनका रिस्पांस एक ही होता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम मतलब, और मतलब मुझे ऐसा भी शायद फील हुआ कि काफ़ी मतलब मेरी और मेरी वाइफ के रिलेशनशिप में भी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मतलब स्ट्रेंड हो गया, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव आया। क्योंकि जाहिर है जब आप मतलब दूर होते हो, और तो वो अच्छी चीज़ें तो होती नहीं है, शेयर होती नहीं है वो, पर ऐसी ही चीज़ें शेयर होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस वक्त आया। फिर ये होता था कि जब आप पाकिस्तान में बैठे होते थे, जो जो रिलेटिव से साल में एक बार बात होती है, उसकी भी कॉल आती थी, आ गया वीज़ा, वो आ गया या इधर ही है। तो वो बड़ा एक होता था। तो वो कभी कभी दिल करता था कि फोन ऑफ करके बैठ जाए। यार मेरे इस तरह ये होता था, मुझे होते थे फिर देता है स्टेप वन किदों देना है, इस साल देना है, अगले साल देना है। अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, हमारा हाँ कल्चर जी। ऐसा है। तो और फिर वो हर एक को आप फिर पूरा एक्सप्लेन करते हो कि जी वो प्रोसेस ऐसा है। क्योंकि हर हम्म। बंदे को लगता है कि अच्छा यार वो उनको उनसे बात कर लो। तो उनको आप बड़ा एक्सप्लेन करते हो कि यार प्रोसेस ऐसा है कि बात नहीं हो सकती। हम्म। तो एनी हाउ, खैर आया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी टाइम में आ गया। अपना कितने वालों ने कितने महीनों बाद आया? 3 मंथ्स बाद मेरा टोटल आया था। अच्छा, ठीक है। तो और आप कहते हैं अपना वालों ने भी हेल्प की थी आपको? हाँ जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से भरपूर, शहजाद भाई ने, फातेह शहजाद भाई ने, शहजाद इकबाल भाई ने, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर उस वक्त भी एफर्ट्स की जितनी वो कर सकते थे। खैर आ गया मैं वापस। अब ज़ाहिर रेजिडेंसी में भी मैं ऑफ साइकिल हो गया, और मुझे आके थोड़ा कैचअप करना पड़ा। क्योंकि वो आप कहते हो ना 3 महीने में आपको हल्का सा जंग भी साइक में एक बिल्कुल। वो होता है। तो थोड़ा सा खैर वो कैचअप करने में टाइम लगा। लेकिन जो उस ट्रिप में मुझे एक अच्छी बात लगी कि अली हाशमी साहब हैं मेयो में, कई कि आपको तो खैर पता ही होगा शायद, जी जी, मैं जानता हूँ साइकाइट्री। बिल्कुल। जी साइकाइट्री जी। में वो पहले शायद पंजाब में थे, जो यूएस से आगे थे यहाँ लाहौर। तो उनसे बड़ा मतलब कुर्बत पहले से जानता था, लेकिन बड़ी बढ़ गई, उनसे बड़ी चीजें सीखने को मिली। उन्होंने वो अपने अक्सर वार्ड भी बुला लेते थे। तो एक बड़ा अच्छा एक वो लगा। उन्होंने बल्कि मुझे कहा यार ये अब तुम आए हुए हो तो लोगों को गाइड करो। तो पहले भी मैं स्टेप्स के लिए लोगों को गाइड करता था, लेकिन वहां से मैंने प्रॉपर एक शुरू कर दिया कि यार ठीक है, मतलब मजीद अब करना है गाइड लोगों को। तो वो सही। उन्होंने मुझे 4-5 लोगों को असाइन किया, और फिर इसी तरह अपने सिम्स के भी मैंने काफी ज्यादा। तो वो एक बड़ा वो सिलसिला शुरू हो गया। खैर मैं आया, वो कैचअप वगैरह करने में टाइम लगा, हो गया जाहिर है। अ, फिर ये था कि चीफ रेजिडेंट का था, वो मुझे शुरू से शौक भी था, और मैं एस्पायर भी करता था। तो वो जब बनने की बारी आई, तो वो उन जीएमई कमेटी ने
कहा जी ये ऑफ साइकिल है, ये चीफ प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो मुझे वोटिंग में नहीं डाला। तो वो भी मतलब वही बात है ना कि डाउन हाइंड साइड में तो आपको लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन जाहिर उस वक्त आपको थोड़ा सा फील तो होता है कि यार मतलब ये क्या है। हम्म। खैर वो भी खैर गुजर गया टाइम। आ, फिर मुझे किसी ने इसी तरह दोस्त ने मशवरा दिया हार्डशिप वेवर का। हम्म। तो मैंने कहा भी मैं तो मुझे अब पाकिस्तान जाने से तो बेहतर है कि मैं कुछ भी करने को मतलब जाहिर है वीजे से बचने के लिए कुछ करूं। हम्म। करते करते वो जाहिर है बेटी का था भी मसला, तो उसके चक्कर में अप्लाई हमने हार्डशिप वेवर कर दिया। और वो भी थोड़ी अपनी भी बेवकूफ़ी थी, इतना पता नहीं था, खाली मैंने अपना किया, वाइफ का नहीं किया, ये सोचा कि एक तो ज़ाहिर है वो पैसे भी उसको जरा कमी भी हो गई थी, और दूसरा ये था हमने कहा यार वो डीएस का भी एक कंफ्यूजन थी कि अभी करना चाहिए या नहीं। खैर किया। तो करते करते जी हार्डशिप अप्रूव हो गया। तो वो पता बाद में चला कि हार्डशिप अप्रूव होने का मतलब है कि आपका वो टाइम तो बच गया, लेकिन वीज़ा कन्वर्ट यहाँ से नहीं होगा, जाना पाकिस्तान ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंडर सर्व में वो शर्त नहीं है। अब हुआ मेरे साथ ये था कि मीनवाइल जो यूएस कॉन्सुलेट है ना लाहौर का, उनसे मेरे ऑनलाइन बड़े एक अच्छे टर्म्स बन गए थे। उनकी कॉन्सुलेट जनरल बड़ी सीनियर मतलब डिप्लोमेट ऑफ मतलब सेकंड टू एम्बेसडर एक किस्म की होती है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप वॉलंटियर हमारे लिए करो। मेंटल हेल्थ का उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी मतलब कमी है अवेयरनेस की। हम्म। तो फिर उन्होंने ऑनलाइन मेरे साथ सेशंस किए, वीडियोस की, और वो मतलब ऑनलाइन हमने एक किया जिसको मतलब काफ़ी हज़ारों लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जो वीडियोस थी उसमें ऑलमोस्ट 50,000 व्यूज़ वगैरह आए। तो उनसे भी मैंने ये डिस्कस किया कि यार मेरा इस तरह मसला वगैरह रहा, तो उन्होंने भी मुझे कहा जी कि वो नाम की वजह से होगा, तो होपफुली आइंदा आपका नहीं। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार चलो अब मैं जा रहा हूँ, मेरा एक बार 3-4 महीने लग गए हैं, ठीक है, और अब मतलब एक किस्म का डीयूएस के ऑफिशियल पेज पे आ गया हूँ, तो अब तो मतलब एक बचगाना बात ही होगी अगर मजीद तंग करेंगे तो इस बार भी फिर जब हुआ तो मैंने कहा जी ठीक है, H1 के लिए मैंने अपने लॉयर से भी, इवन जो मैंने जहाँ साइन किया अपनी करेलियर क्लिनिक में, तो मुझे लॉयर ने भी कहा कि हाँ ठीक है आपका H1 है, पहले एक बार हो गया, तो मैं आप ठीक है आप चले जाए आराम से। तो जी मैं अपनी बर्थडे वाले दिन 31 अगस्त को अ, बड़ा तैयार होके, बड़ा उम्मीद पुरुमीद होके गया। और बड़ा उस ऑफिसर ने भी बड़ा जी साइक पे मेरे से डिस्कशन भी शुरू की। बड़ा एक बड़ी फ्रैंक डिस्कशन हो गई, उसने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जी ये तो कोई इंटरव्यू ही नहीं, बड़ा मैं वो भी बड़ा अच्छी तरह करते करते एंड पे मुझे कहता है जी आपका प्रोसेसिंग में आई एम पुटिंग। तो आई वाज लिटरली शॉक, मैंने कहा व्हाट। तो मैंने कहा कि आप अगर फेसबुक या ट्विटर आप खोल सकते हैं तो मेरी वीडियोस आपके पेज पे पड़ी हैं, पहले आप कर चुके हैं। तो उसने मुझे मतलब ढके चुपे अल्फाज में, डायरेक्ट डायरेक्ट तो आपको पता है वो कह नहीं सकते, तो उसने यही कहा कि जी बैक एंड से है। उसने कहा लेकिन उसने पूछा जी लास्ट टाइम आपका कितना अच्छा रहा था, मैंने कहा जी 3 मंथ्स। तो कहता है या डोंट वरी विल गेट इट आउट ऑफ प्रोसेसिंग प्रीटी सून दिस टाइम। खैर करके आ गए। तो उसने बड़ा अच्छा बर्थडे का गिफ्ट दिया। तो उस वक्त मसला ये हुआ कि उस वक्त भी मुझे यही था कि अब वो कह रहा है मुंह से तो मैं यकीन कर लेता हूँ उसकी बात पे। तो उस वक्त भी फिर वही सारे स्टेप्स रिपीट किए, सेनेटर्स हर चीज की, यहाँ तक कि वो कॉन्सुलेट वालों से भी बात की, लिटरली कॉन्सुलेट वालों ने खुद बात की। वो कॉन्सुलेट वालों को भी एक ही जवाब देते थे कि अफगान एम्बेसी बंद है, उस वजह से हमारे पास बैकलॉग इतना है कि हम सांस ही नहीं ले सकते। जिससे कहो वो यही बात करता था। मतलब हर तरह के, मुझे तो ऐसा लगता था कि सिवाय बाइडन के मैंने हर एक को कांटेक्ट कर लिया था। और मैं यहाँ तक भी सोच रहा था कि एक ईमेल बाइडन को भी लिख दूं। तो हम्म। यहाँ तक कि एक मेरा जानने वाला था, वो डॉक्टर फाउची के डिपार्टमेंट में काम करता था। डॉक्टर फाउची की पीए की भी ईमेल ले ली। उस वक्त आपको पता है कोविड था, डॉक्टर फाउची बड़े मतलब एक बला चीज थे। डॉक्टर फाउची से भी रिक्वेस्ट की और उनका भी रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि यार मैं हमदर्दी जरूर कर सकता हूँ लेकिन कर कुछ नहीं सकता। तो कहने का मकसद है कि सारा उनको कोविड के भी बड़े वास्ते दिए, उनको बच्चों के भी दिए कि भाई अब तो 2 बेटियां हो गई हैं। तो सारा कुछ कर करा के भी एंड तक कुछ नहीं बना। अब इस बार तो 3 महीने भी गुजर गए। तो अब तो हुआ कि मतलब यार करें क्या, और उधर से वो हॉस्पिटल वाले भी परेशान हो। मतलब जाहिर है वो आपको पता है कि रेजिडेंसी और अटेंडिंग लाइफ में ये तो फर्क होता है कि आप को वो इस तरह तो नहीं कहेंगे कि हम आपको निकाल दें, क्योंकि जाहिर है उन्होंने साइन ऑन बोनस बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है आप पे। तो फिर उसके बाद मैं सारा दिन सुबह उठ के सर्च करता रहता था फोरम्स पे इधर उधर। तो उसमें जी मुझे एक सर्च करने से
पहली बार मुतारिफ हुआ मैं टर्म रिट ऑफ मैंडेमस। मैंने कहा यार ये चीज को अच्छी लग रही है। उसमें पढ़ा तो डिटेल ये थी कि जी आप, अगर आपको लगता है कि आपका अंडी उन्होंने रोका हुआ है, तो आप डीसी के कोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आपकी जो एम्बेसडर होगा मुल्क में यूएस का, उसको लॉ सूट फाइल कर देंगे। तो उसमें बड़ी मेरी परेशानी भी हुई कि यार पता नहीं इसके चक्कर में वो और ही ना कुछ कर दें। कर करा के हॉस्पिटल वालों के जो लॉ फर्म थी उसमें से एक बंदा था जो करता था, उससे बड़ी डिटेल मेरी डिस्कशन हुई। तो उसने कहा जी कि आपका ना केस स्ट्रांग है, तो मैं करता हूँ। उसमें होता ही है कि विद इन 60 कैलेंडर डेज इधर दे रिलीज योर वीजा, या फिर वो जज के सामने उनको जाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम डिले क्यों कर रहे हैं, या अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो क्यों रिजेक्ट करने के। तो उसने मुझे कहा यार आपका जिस तरह का केस है ना, वो कभी भी जज के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि मतलब वो क्या कहेंगे कि जज के सामने जाके। तो मैंने कहा जी ठीक है। खैर उसने 5 to almost $10,000 थे, तो उस वक्त मेरे पास तो थे नहीं। हॉस्पिटल वालों ने कहा जी नहीं हम आपका करेंगे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो वो हॉस्पिटल वालों ने कर दिया फाइल। तो इवेंचुअली ऑलमोस्ट 4 मंथ्स टोटल लगे, मतलब इस बार 3 के बजाय मेरा निकल आया। और तो इस बार मतलब ज्यादा सिचुएशन मुझे मतलब लगी कि मतलब एक किस्म का लोग मजाक भी उड़ाते थे, यार तू जब आता है फंस जाता है, मतलब चक्कर क्या है, तूने उधर क्या किया है, और मतलब फिर वही रिश्तेदारों के मोहल्लेदारों के चीजें। तो इस बार मैंने क्या किया था, मेरी रेजिडेंसी तो खत्म हो गई थी, तो मैंने मतलब प्रैक्टिस शुरू कर दी लोकली। एक दोस्त था, उसके क्लिनिक में बैठ के एक पेशेंट कुछ ऑनलाइन देख लेता था, मतलब टाइम को गुजारने की कोशिश की। मतलब और उसी तरह वो जो अपनी गाइडेंस वाला था। पाकिस्तान में? हाँ जी, मतलब मैंने ऑनलाइन एक किस्म का शुरू कर दिया मरहम वगैरह के साथ, और कुछ क्लिनिक में दोस्त के देख लेता था, तो बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू हो गया। और मुझे फिर ये भी फीलिंग आई कि मुझे था कि उसमें मैंने उस टाइम पे फिर जो लोगों को गाइड करने वाला था ना, उसको भी रैंप अप किया चीज को, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इन्हीं चीजों की वजह से ही मैं शायद मुश्किलात से पहले भी निकला हूँ और अब भी निकलूं। और मुझे लेकिन बाज औक़ात लिटरली मुझे ये भी फीलिंग आती थी कि यार शायद इतनी मेहनत जो की है, वो करियर का क्या सिर्फ यही एंड है कि कंप्लीटेड रेजिडेंसी, मैं बोर्ड का एग्जाम भी नहीं अपने दे सका, तो रेजिडेंसी कंप्लीटेड ये मेरी फाइनल डिग्री होगी। तो वो भी जाहिर है आती थी। हालांकि अगेन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है मैं बेसलाइन हाइपोमैनिक हूँ, तो वो डिप्रेशन वाला नहीं सिलसिला हुआ। लेकिन एक आपको बैक ऑफ द माइंड आता है कि यार मतलब मैं क्या करूँ। तो वो सारा खैर कर कुरा के एंड पे आ गया। तो मैं आ गया। और अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, इस सारे प्रोसेस में भाभी दोनों बच्चियों के साथ अमेरिका में थी? मेरे, हाँ जी, वो वाइफ के साथ थी, क्योंकि अच्छा। सेकंड टाइम तो मैं आया ही अकेला था। मैं तो वो आया भी ही बहुत अकेला। स्ट्रेस होगा कि भाभी के लिए हैं, दो बच्ची यही हैं और वो। भाई यही तो स्ट्रेस था कि वो रेजिडेंसी भी कर रही है, दो बच्चे छोटे हैं, चाहे वो डे केयर भी जा रहे हैं। आपको पता है कि एक्सपेंसिव, एक तो होता है कि एक्सपेंसेस वही रहते हैं, चाहे आप मिलियन कमाना शुरू कर दें, चाहे आप 100,000 कमा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और इनकम जरा सी भी कम हो जाए तो एक वो था। फिर दूसरा मसला ये था कि उधर करे जाए कौन, हेल्प कौन करे, और मतलब जाहिर है वहाँ तो कोई ऐसी नैनी सर्विसेज वगैरह भी उस तरह आपको नहीं मिलती। घर के भी वो काम कर रही थी, तो मतलब इस पूरी जर्नी में मेरे से ज्यादा जो मुश्किल टाइम है ना, वो मेरी वाइफ ने गुजारा है। क्योंकि मैं मुश्किल में पाकिस्तान तो बैठा हुआ था, लेकिन मैं बैठा तो अपने घर वालों के साथ हुआ था। बचपन के दोस्त भी थे, घर वाले भी थे, खाने भी थे, हर चीज थी। लेकिन वो उधर फेस कर रही थी, मतलब वो रेजिडेंसी भी कर रही थी। रेजिडेंसी में उसको अपने ही हस्बैंड से, आपको पता है लोग ना चाहते हुए कंपैरिजन भी करते हैं, उसको भी देखना था, एक्सेल भी करना था, और बच्चों को भी देखना था। तो बहुत ही मुश्किल, मतलब इस तरह का भी टाइम बीच में आ जाता था कि मतलब लगता था कि फोन बंद करके बंदा बैठ जाए। और मतलब होता था कि यार मतलब क्या, एक जिसको कहते हैं ना ट्रू हेल्पलेसनेस की फीलिंग। क्योंकि जब मुझे पेशेंट्स बताते थे ना हेल्पलेसनेस की फीलिंग, तो आई कुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड। लेकिन मैं उनको अब, जिसे कहते हैं ना कि यू शुड पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, मैं शायद इन एक्सपीरियंसेस से पहले आई कुड नॉट पुट माई सेल्फ इन देयर शूज।
क्योंकि मैंने वो खुद वो चीज़ देखी नहीं थी। मुश्किलात जिस तरह बताया पहले आई, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब आप अकेले होते हो ना, तो मुश्किलात, इवन आप मैरिड भी हो, बच्चे ना हो, तो आप शायद बर्दाश्त कर सकते हो। और जो बच्चों का होता है, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताता हूँ एक मज़ेदार चीज़, मेरी वाइफ़ के सी सेक्शन थे दोनों ही। तो जो मेरी बड़ी बेटी थी, आयशा उसका नाम है, तो उसको सी सेक्शन के बाद मैंने पकड़ा, उसको मैंने फीड वगैरह किया। तो आपको पता है ज़्यादातर हमारे देसी कल्चर में ज़्यादातर होता है कि बच्चे माँओं के साथ अटैच होते हैं, लेकिन वो ऑपोजिट था। वो मेरे साथ, मतलब मैं उसका प्राइमरी एक किस्म का केयर टेकर था। वो जो उसकी पीडियाट्रिशियन थी ना, उसने ही मुझे ये टर्म बताई कि आप उसके प्राइमरी केयर गिवर, वो आपका जो पहली बार दूध पिलाने से एक बॉन्ड बन गया ना। मुझे नहीं पता उसने फिलोसफिकल बात की या जो भी की, लेकिन वो आयशा के साथ ऐसा था। और वो क्योंकि अब बड़ी भी हो गई थी, तो वो बहुत ज्यादा रोती थी पीछे से, कि मतलब अब जाहिर है उसको ये तो नहीं, उसको ये तो पता था कि डैडी दूर है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि क्यों दूर है। फिर उसको ये भी होता था कि मतलब क्या जान के दूर है मेरे से। तो वो बहुत ही ज्यादा एक मतलब इमोशनली होता था कि यार, एक तरफ बीवी है जो मुश्किल में है, एक तरफ बच्ची है। फिर वो जो हम्म। छोटी बेटी थी, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे इमोशनली डिस्टेंट हो गई। कितनी एज थी बच्चियों की इस वक्त? आ, मैं जब अभी सेकंड मैं गया हूँ ना, तो मेरी जो छोटी बेटी थी ना, वो थी 9 मंथ्स की। और जो बड़ी बेटी थी, वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 2.75 साल की थी। बड़ी खूबसूरत एज होती है ये। और जी। उसको अगर आप मिस कर रहे हैं तो बच्चे, और वो उसमें आप बच्चे के साथ रीजन और लॉजिक अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। जी। तो वो फिर जब बड़ी बेटी ने चलना शुरू किया, वो भी मिस किया। छोटी ने हल्का हल्का बोलना शुरू किया, वो भी मिस हुआ। तो फिर जब मैं वापस आया, तो मुझे ये चीज़ वाकई फील हुई कि जो वो बीच वाली मेरी छोटी बेटी थी, वो एक बकायदा, मुझे ऐसा फील हुआ कि डिस्टेंट है मेरे से। जाहिर है, एक वो जो ऐसा फॉर्मेटिव ईयर्स, उसके 4 महीने उसके सामने सिर्फ वीडियो चैट पे एक मतलब शख्स आता था। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली एक टर्मोइल, मतलब मैं उस सेंस में था कि आप समझ लें कि कुछ चीज़ों के एवर लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं, शायद उनमें से वो एक थी। तो उसके बाद खैर जब आ गए, तो आया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसमें भी फिर जाहिर है थोड़ा सा, मेरी क्योंकि वाइफ की रेजिडेंसी अभी थी, तो वो फिर मुझे टू एंड फ्रो फ्रो ट्रैवल करना पड़ता था। मैं 2 वीक्स लगातार काम करता था वर्जीनिया में, और फिर मैं ट्रैवल करके फार्गो आता था। कभी फ्लाइट मिस, कभी सर्दी में एयरपोर्ट पे बैठे ठठर रहे हैं, कभी कार लेके अल्लाह अल्लाह करके आ रहे हैं, कभी कार इधर स्लिप हो रही, कभी उधर स्लिप हो रही है। मतलब आई लव फार्गो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। लेकिन फार्गो का जो वेदर है, इट्स विशियस। मतलब फार्गो का जो वेदर है, इट्स वे वर्स देन मोस्ट ऑफ द अलास्का, लिटरली। वहाँ वो जो विंड चिल्स चलती हैं, वो इतनी चलती हैं कि वो आर पार हो जाती हैं। और तो वो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बाजू का लिटरली ऐसा लगता था कि यार, अब मेरा एक्सीडेंट हुआ ही हुआ। तो बड़ा मतलब वो फिर 5-6 महीने टफ गुजरे। अब एक और उसमें इशू होता था, जब मैं काम करने जाता था, वो बड़ी बेटी पूछती थी, फिर पाकिस्तान जा रहे हो? अब वही बात है कि उसको मैं अब क्या बताऊं कि भाई नहीं। फिर उसको एक वर्जीनिया का नाम बताना शुरू किया, तो उसको इम्प्रिंट हो गया कि नहीं, ये वर्जीनिया जा रहा है। और अल्लाह अल्लाह करके फाइनली वाइफ की रेजिडेंसी खत्म हुई। अ, हुई, वो मूव हुई उसके बाद। अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी जो बीच वाली बेटी है, उसके थोड़ा सा करीब आना शुरू हुआ हूँ। और वो फिर जाहिर है, उसमें ये भी हुआ कि अब माशाल्लाह हमारी तीसरी बेटी भी अभी अभी पैदा हुई है। तो वो एक डिफरेंस माशाल्लाह। ये था कि जो मेरी लास्ट बर्थडे थी, उस पे प्रोसेसिंग का तोहफा मिला, इस बर्थडे पे बेटी की माशाल्लाह पैदाइश का मिला। तो वो इत्तेफाक से मेरे बर्थडे वाले दिन ही उसकी पैदाइश हुई है, अब से कुछ दिन पहले। जी जी, और माशाल्लाह। यही सोच के होता है कि मेरे वालिद साहब सेल्स में थे। तो वो मतलब डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, सेल्स में यूनिलीवर में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे। तो उनका ना लोगों से इंटरेक्शन बड़ा होता था। तो वो ऐसा लगता था कि काफी लोगों को ना अच्छा तरह, कुछ लोगों की साइकी समझते हैं। तो वो मुझे कहते थे कि यार देखो, वो मुझे शुरू से एक बात कहते थे, शुरू में मुझे बड़ी हंसी भी आती थी कि यार ये क्या मतलब, मुझे वो मुझे कहते थे कि यार, अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है ना, तो वो बंदा एक तो बड़ी मजबूरी में मांगता है, दूसरा ये आप पे अल्लाह का एहसान है कि कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, कि अल्लाह ने आपको ऐसी पोजीशन में ला के रखा है। जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में मेडिकल कॉलेज में था, वो मुझे कभी किसी सर्वेंट को
कि मोहल्लेदार में मुझे कहते थे यार किसी को चेक करा दो। शुरू शुरू में मतलब मुझे बड़ी होती थी कि यार मैं ऐसे ही जाकर प्रोफेसरों के तरले करूं कि मतलब जाएं खुद करा लें, मतलब ये बड़ा वो होता था। खैर आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू किया करना मैंने। तो वो मेरे जहन में शुरू से बात एक किस्म की इम्प्रिंट हो गई कि यार आपको जिस तरह मेरी रेजिडेंसी होने में एक किस्म का खुदाई, एक तो लोगों ने तो हेल्प की जाहिर है बहुत ज्यादा, फिर एक खुदाई मदद थी कि बिल्कुल चेंज ऑफ फॉर्च्यून था कि 4-5 कॉलों से 20 पे पहुंच गए। और उसके बाद इतनी बीच में मुश्किलें आई कि ऐसा लगा कि अब ये करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हर चीज वो निकल गए। तो वो जहन में एक बात हमेशा से थी कि यार लोगों की हेल्प करनी है। फिर वो आप देखें कि चाहे हमने वो पपाना में हो लोगों की करना, अपना में कोशिश हो, बल्कि बाज़ औक़ात बीवी से इस बात पे नाराज़गी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है कि बीवी बच्चों पे ध्यान देने के बजाय फलाही काम ज़्यादा करते हो, और वो बाज़ औक़ात फिर ये थोड़ा हर सा घर की कहानी है भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। वो वो एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि क्यों ये करना जरूरी है और क्या मसला है, लेकिन आई गेस विद टाइम योर फैमिली स्टार्ट्स गेटिंग वेरी प्राउड ऑफ यू एज वेल। जी जी। हाँ, तो आपकी बच्चियां जो है, खास तौर पे मेरी बेटियां जो है, दे आर इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ ऑल द वर्क आई हैव डन एंड, और सेम थिंग, आपकी बच्चियां भी छोटी हैं लेकिन इंशाल्लाह बड़ी होंगी, जब वो थोड़ा समझेंगी, स्कूल जाएंगी, आपको इतने लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए, थैंक यू कहते हुए देखेंगी, ग्रेटफुल आपके होंगे इतने ज्यादा लोग, तो दे विल बी इनक्रेडिबली प्राउड। और पता है क्या होता है, बच्चों को हम जितना मर्जी बोले बेटा ऐसे करो वैसे करो, वो नहीं आते। बच्चे जो होते हैं ना, दे आर वेरी गुड एट कॉपिंग यू। तो उन्होंने ये गिविंग एटीट्यूड आपका देखा है, सेल्फलेसनेस गिविंग एटीट्यूड, वो बच्चियां आपसे सीखेंगी। बिल्कुल। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सी चीज़ें सीखी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आपकी ये 100% मैं बात से एग्री करता हूँ कि वाकई मॉडलिंग करते हैं, मतलब आपके बिहेवियर के मॉडल बच्चे करते हैं, बिल्कुल। ख़ास तौर पे मतलब मैं ऑनेस्टली मुझे मतलब घर वाले थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं कि मैं मतलब शादी से पहले आई वाज समवन लाइक पानी का गिलास भी छोटी बहन को कह दिया दे दो, अम्मी की मिन्नतें कर ली दे दो, उठने का दिल नहीं करता। उसी के लेकिन साथ यहाँ पूरे करने पड़े हैं यार, हर दफा हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग पे वही वही दुआएं लगी सारी। तो यहाँ आके मुझे कुछ शौक भी था, कुकिंग भी शुरू कर दी। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अपने बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दे सकता हूँ, लेकिन डायपर नहीं चेंज कर सकता। वो भी जाहिर है किया, और अब तो मतलब ऐसा लगता है कि सारी उम्र से डायपर ही चेंज कर रहे हैं। मतलब हालांकि वही बात है कि एक हमारे बैक ऑफ द माइंड एक पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है। बच्चे तो मियाँ बीवी दोनों के ही हैं और दोनों को ही करना है, खासतौर पे जब दोनों ही काम कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इन एडवर्स एक्सपीरियंसेस से एज अ पर्सन मैंने बहुत ज्यादा ग्रो किया, क्योंकि बहुत सी मेरे में ऐसी जो कमियां थी, कोताहियां थी एज अ पर्सन, मतलब एज अ डॉक्टर तो जो भी है या नहीं है, तो एज अ पर्सन मुझे इन एडवर्स एक्सपीरियंसेस से बड़ा सीखने का मौका मिला। और अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई मिसहैप होता है छोटा मोटा, तो उसमें कोशिश यही होती है कि उससे सीखा जाए। सही कह रहे हो आप। मेरा पता क्या, मैंने जो सीखा है यार, कि मैंने भी काफी, आई हैड माय ओन शेयर ऑफ डिफिकल्टीज एंड एडवर्सरीज। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके बाद बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी टेंशन स्ट्रेसर्स आते हैं आपको, जिन पे दूसरों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने इससे बड़ी टेंशन देखी हुई है, मैं संभाल एग्जैक्टली। लूंगा। आप कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। मुकाबले में तो बहुत छोटी सी चीज है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यही एग्जैक्टली यही बात मुझे लगती है कि वाकई अगर आप उसमें से एक मुश्किल सिचुएशन में से निकल आए, और मुझे एटलीस्ट मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये एक फीलिंग अच्छी आती है कि जब मैं ना उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में भी था, तो अपनी तरफ से मैंने पूरे हाथ पांव मारे, चाहे वो सेनेटर्स को कांटेक्ट करना हो, कांग्रेसमैन और वुमेन को कांटेक्ट करना हो, फाउची को ईमेल करना हो। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग व्हाइट हाउस, आई डिड एवरीथिंग। तो चाहे वो इवन यहाँ हो के पाकिस्तान में कोई सिफारिश निकाल के शाह महमूद कुरैशी तक भी मैसेज पहुंचा दिया जाए, और वहां से भी यही जवाब आए कि भाई हम कहेंगे तो हो सकता है मजीद फंस जाए। सही। तो, तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें मतलब सीखने को मिलती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता है कि व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज के बिकॉज आई एटलीस्ट ट्राई टू हेल्प अदर पीपल। तो वो कहते हैं ना कि हकूक हकूक अल्लाह तो है ही हैं, हकूकुल इबाद,
और मेरा हमेशा में मतलब यही एक कॉन्सेप्ट रहा है कि हम शायद मुआशरे में एक्सट्रीमिज्म इतनी आ गई है कि हम हकूक अल्लाह पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, लेकिन शायद हकूकुल इबाद निकल गए हैं। तो मेरे जहन में यही होता था कि क्योंकि मैं कोशिश एटलीस्ट करता हूँ कि मतलब हेल्प करूँ लोगों की, तो शायद इसी वजह से मैं किसी ना किसी तरह एट द एंड ऑफ द डे इससे निकल सकूँ। सही। तो अब आप कब आए हो लास्ट अमेरिका? मैं लास्ट दिसंबर को आया हूँ। दिसंबर 2020 में आए हो? 2021 में? 2021। 2021 में। तो हाँ अब जी। आपको अमेरिका आए हुए 9 महीने हो गए। हाँ जी, 9 मंथ्स हो गए तो जी। अब आपको वापस तो नहीं जाना? नहीं, मेरा अल्लाह का शुक्र है, ग्रीन कार्ड क्योंकि वो अप्लाई हो गया, वह प्रोसेस में है। अब ठीक है। अल्लाह से दुआ यही है कि वो खैर खैरियत से जो प्रोसेस है वो 5-6 महीने में मिल जाए। तो उसके बाद क्योंकि अब मुझे मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने बड़ी स्ट्रिक्टली कह दिया कि भाई अब ग्रीन कार्ड के बगैर ना। अच्छा, नहीं, मैं अपने ग्रीन कार्ड का एक्सपीरियंस बता दूं। मेरा ग्रीन कार्ड 2004 में आया था या 2003 में, और मुझे सिटीजनशिप, मेरी नेचुरलाइजेशन 2014 में हुई थी। तो मुझे ग्रीन कार्ड के साथ जो रगड़ा है ना, वो 11 साल लगा। ठीक है, वो आप जाते हो उसमें आपको सेकेंडरी प्रोसेसिंग में भेज देते हैं, 6-6 7-7 घंटे में बैठा हूँ। और आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है वो भी मिस हो जाती हैं। तो ग्रीन कार्ड का इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो होता है। आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में नहीं हाँ फंसोगे, जी। लेकिन JFK पे या शिकागो में जहां भी आप लैंड हुए उधर हो सकता है 8-8 घंटे बैठना पड़े। नहीं नहीं, वो भी वो ख्वारी होती मैं है। वो मैं मेंटली तैयार हूँ। हाँ, उससे बड़ी टेंशनें देखी हुई है, ये छोटी टेंशन होगी। वो मैं मेंटली तैयार हूँ। मुझे मुझे अब वो जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद वाला ना, उस तरफ ना जाना पड़े, बाकी मैटर सही है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मतलब देखो, हम सब लाइफ में, हम सब पे मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं। वी ग्रो फ्रॉम देम, वी लर्न फ्रॉम देम, राइट? हम लोग, मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि लाइफ में आप उतने ही बड़े होते हो जितनी बड़ी मुश्किलात का आप सामना करके आगे निकलते हो। तो व्हाट डिड यू लर्न, लाइक, और व्हाट डू यू थिंक आप पे ये इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आए, स्पिरिचुअली या लॉजिकली? आई एम श्योर यू समटाइम्स थिंक यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड व्हाट डिड यू थिंक, लाइक हाउ डिड यू ग्रो आउट ऑफ देम? आई थिंक पहले टू आंसर द फर्स्ट पार्ट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अ, मैं ज्यादातर जो चीजें जिनमें मुझे सोचना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेरी गलती, कुछ चीजों में। और जो दूसरी चीजें थी उनमें ये था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वो क्यों हुआ कि उस होने से मैंने बहुत कुछ सीख लिया जो वो ना होता तो मैं ना सीख पाता। हम्म। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, ये जो जिस तरह आपने ये सिलसिला शुरू किया, जो मेन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का जो एक कैंपेन छोटी मोटी मैं रन करता हूँ, जिसमें मेरे 20-25 हज़ार मेंबर फेसबुक पेज पे भी हैं, तो वो वहीं माशाल्लाह। से सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं पहली बार प्रोसेसिंग में फंसा था। और जो नेटवर्किंग का सिलसिला मैंने शुरू किया था वो मेनली मैंने वहां से शुरू किया था। तो सही। अगर मैं ना फंसता तो शायद वो भी ना शुरू होता। और इसी तरह जो सेकंड टाइम पे मैं फंसा, और तो जो उसमें भी मुझे, मैंने जिन लोगों को देखा, मुझे, आप यकीन करें कि आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो कि साइक में आपको पता है कि पाकिस्तान में उस तरह एक अवेयरनेस नहीं है, उस तरह शायद एक्सेस नहीं है। तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकाइट्रिस्ट हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब यहाँ आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। तो मुझे बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप जिस तरह हमसे अप्रोच से बात कर रहे हो, हमसे आज तक किसी डॉक्टर ने उस अप्रोच से बात। तो बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिली। शायद मैं सारी उम्र पाकिस्तान में साइक के पेशेंट देखता ही ना। तो एक तो ये चीज, दूसरी ये चीज मुझे मतलब जो एक और चीज जो हुआ, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे वो 6-7 टोटल महीने एक्स्ट्रा 1-to-1 पेरेंट्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हुआ, जो कि शायद वो भी एक ब्लेसिंग है। जाहिर है इस फैमिली के साथ नहीं हुआ, जिसका तो मतलब जाहिर है अफसोस और रिग्रेट है ही है, लेकिन जो पेरेंट्स की थोड़ी बहुत अपनी तरफ से खिदमत करने का मौका मिला, तो शायद वो भी था। तो ओवरकम तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किया, जो चीज़ हो गई गुजर गई, नुकसान जो था वो हो गया, लेकिन उससे वही बात कि सीखा बहुत कुछ। सही। सही। तो शायद वो तो चीज़ें मैं, हुई इसीलिए कि मुझे मैं सीख सकूं। सही। सही। विच इज ट्रू। मुझे लगता है वो जो आप कह रहे थे ना, ग्रोइंग अप, चाय भी और पानी भी छोटी बहनों से मंगवाते थे, ये सब उसका नतीजा है। मजाक कर रहे हैं। मेरे ना
आई एग्री विद यू कि लाइफ में ना आप पे बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं जो उस लम्हे पे आपको लगता ही है कि बहुत बड़ी मुश्किल है, और आप सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वो अल्लाह मियाँ आपको उन परेशानियों में इसलिए डालता है क्योंकि अल्लाह मियाँ ने आपको बहुत बड़े आपसे काम निकलवाने होते हैं, करवाने होते हैं, जो शायद अगर आप उन मुश्किलात में ना पड़ो तो ना हो। ये यूट्यूब चैनल उसकी एग्जांपल है। मेरी नी सर्जरी हुई थी। आई वाज ऑन बेड फॉर 10 to 12 वीक्स। बाथरूम तक जाना बड़ा एक अजाब होता था और बड़ी बुरी हालत थी। तो यार मैं बड़ी टेंशन में आ गया यार, बड़ा मुश्किल होता है आपका कि बच्चे आपके फिर चल सकते हैं, आपके घर में हर बंदा जहां दिल करे चले जाता है, उठ के नीचे उठ के ऊपर कहीं, और आप बेड पे हो, क्या करोगे यार। तो और आपको अपनी लाइफ बड़ी यूजलेस लगती है कि मैं आप शायद ऐसी सारी जिंदगी अब मैं ऐसे ही रहूंगा क्या। तो वो मुझे बड़ा स्ट्रेस कि नहीं यार, मैं अगर बिस्तर पे भी हूं तो मेरी वैल्यू है, आई कैन डू समथिंग। तो मैंने ये यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी, और वो देखो वो इस तरह ही हुआ। तो मुझे अपने में एक थोड़ी सी फील हुई कि नहीं यार, अगर मैं बिस्तर पे भी हूं ना तो मेरी कुछ वैल्यू में कोई डिफरेंस ला सकता हूँ लोगों की जिंदगी में। एंड दैट इज द होल पॉइंट कि अल्लाह ताला आपको उन मुश्किल, अब आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड, कोई नहीं नहीं, मुझे माशाल्लाह बेसिक्स भी नहीं आपकी तो पता था। वीडियोस हर चीज पे हैं और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। यार अब नहीं बना सकता, दैट्स द होल पॉइंट कि वो इतना टाइम था, 2-3 महीने में बिस्तर पे पड़ा हूँ, कुछ और करने को नहीं है। दिन पे 10-10 वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन अब जॉब पे भी जाना है, घर को भी देखना है, ये वो तो एक मजबूरी का टाइम था ना। तो अल्लाह मियाँ ने वो टाइम भी दिया। वो इसी तरह आपको जो मौका मिला, जो कुछ आपने किया, यू वुडंट हैव बीन एबल टू डू ऑल दैट एंड अचीव ऑल दैट अगर इतनी मुश्किलात में ना पड़ते। तो आई एम वेरी एब्सोल्युटली। वेरी वेरी हैप्पी कि यू डिड ऑल दैट, के यू नो you always not only grew out of it, you grew out of it more successful, more accomplished, and much more smarter and mature. And that is the whole idea of doing all these कि भाई जो बच्चे हमारे पाकिस्तान में पढ़ते हैं उनको लगता है स्टेप्स करेंगे और बस अमेरिका आ जाएंगे और फिर ये दरख्त होंगे और उधर से डॉलर उतरेंगे। ऐसे नहीं होता यार। जो जो मुश्किलात है ना, और लाइफ कहीं भी हो, आप चाहे यूके जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, पाकिस्तान में रहो, सीएसएस करो, एमडी करो, आप लैब करो, जो मर्जी करो, लाइफ में बहुत वो एक इमेच्योरिटी होती है जो आपको शायद टीनेज में या अर्ली 20s में फील होती है कि हम्म लाइफ बड़ी इजी होने वाली है। नहीं नहीं, लाइफ हम्म। भाई मुश्किल ही है। और कामयाब वही लोग हैं जो उन तमाम मुश्किलात का डट के सामना करते हैं, आप जैसे लोग, और उनसे आगे स्मार्टली और सक्सेसफुली निकलते हैं। मैं इसमें एक बस फाइनल जो चीज जो मुझे लगा कि जिसने वाकई एक सिग्निफिकेंट फर्क डाला वो उसमें एक ये था कि जब मैं पहली बार होके प्रोसेसिंग हुई वापस आया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने जो पेशेंट्स हैं, कि मैं इतनी मुश्किल से वापस आया हूँ तो आई शुड वर्क मोर हार्डर फॉर माई पेशेंट्स। आप अक्सर होता है कि आपका इन पेशेंट में कोई स्नासाइक में फॉर एग्जांपल पेशेंट आ गया, तो आपने किया जितना ड्यू डिलिजेंस की बहुत ज़्यादा कोई कोलेटरल इन्फॉर्मेशन पे 10 लोगों को नहीं की कॉल इस तरह। तो मेरा इसी तरह था, एक पेशेंट था ट्रेनिंग के दौरान। तो जो भी था काफ़ी उसको सिग्निफिकेंट मसले थे, सब कुछ था। तो वो पेशेंट कभी होता था, रेगुलरली आता था। तो एक दो बार ना वो पेशेंट नहीं आया। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा कि जी क्या करना चाहिए। कहते हैं यार बात ये है कि भाई ये मर्जी है मरीज की, आए ना आए। ठीक है, अगर आपको को लगता है कि बहुत हाई रिस्क है तो वेलफेयर चेक कॉल कर दो। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है। बहरहाल अब मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मेरा वो प्रोसेसिंग में ना गया होता तो आई कुड हैव जस्ट स्टॉप देयर, क्योंकि मुझे वो शायद एक ग्रेटिट्यूड ना होता कि मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, कि एटलीस्ट अब मैं कुछ करना है किसी के लिए। मुझे ना बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज तंग करती रही। एक दो दिन गुजरे, मैंने उसको एक दो बार कॉल की, उसने उठाया नहीं। मैंने दोबारा ऑफिस उसके नंबर से कॉल की तो उसने मुझे कहा जी कि मुझे ना मेरे पाँव में दर्द है, टांग में दर्द है। तो अब वो एज में भी इस तरह की एज में था। मैंने कहा यार ये वैसे ही अपना ख्याल नहीं रखता, साइकियाट्रिक इतने इश्यूज हैं। मैंने उससे ना जुबानी जुबानी सिम्टम पूछने शुरू हुए। कोई उसको हिस्ट्री नहीं थी किसी कोagulation प्रॉब्लम की, कुछ नहीं। और आपको पता है मैं साइकाइट्रिस्ट बन रहा था, कोई मैं मतलब ना रेडियोलॉजिस्ट हूँ ना कोई मेडिसिन से डायरेक्ट बहुत ज्यादा हमारा तो नहीं होता। तो कोई वो भी जजमेंट ऐसी नहीं थी। तो मुझे पता नहीं एक चीज खटक रही थी, सिक्स सेंस। तो मैंने जब उससे ये, मुझे पता नहीं लगा कि यार इसको कहीं डीवीटी ना हो जाए और ये मतलब सीरियस बात ना हो जाए। उसको मैंने कहा यार तुम इमरजेंसी आ जाओ। तो उसने कहा जी नहीं नहीं मैंने नहीं आना, मैं पागल हूँ, मुझे जिंदगी भर कभी नहीं हुआ ये कर। अब मुझे, मैंने खैर उससे कंसेंट ले ली कि यार मैं तुम्हारी फैमिली को कॉल कर दूँ। उससे कंसेंट ली, काफ़ी ना मैंने वो दिन का टाइम गुजारा, मैंने अपना क्लिनिक बाकी पेशेंट से ऑफ ले लिया।
मैंने उनसे कहा जी एक दो मरीज रह गए, मुझे जरा आप एक करने दें। कर कुरा के एक आध दिन में ना मैं उसको मिनते मुनते करके ले आया। और आप यकीन करें उमर भाई, वो आया है, उसका डीवीटी ना सिर्फ निकला है बल्कि उसका वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म चला गया था। और मुझे ईडी फिजिशियन ने बुला के कहा, वही अब लोगों को जो वीडियो देखेंगे उनको लगेगा ये फिल्मी बात कर रहा है। उसने कहा है कि ये अगर कुछ देर और ना आता ना तो ही इज अ डेड मैन। वो दिन था कि मुझे ये चीज महसूस हुई कि आप, और मैं बार बार आपको वही कह रहा हूँ कि शायद वो मेरे में एक वो मजीद कुछ करने की, क्योंकि मैं एक एडवर्स एक्सपीरियंस से अभी अभी गुजर के आया था एक प्रोसेसिंग में। तो एक मेरे अंदर एक ऐसा ग्रेटिट्यूड था कि मुझे था यार नहीं, मैं अब आया हूँ तो एटलीस्ट इसके लिए कुछ और करूँ। हालांकि वो मैं ना करता तो वो ना तो कोई प्रोफेशनल उसमें था, प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस में अपनी पूरी कर रहा था, इवन सुपरवाइजर ने भी कह दिया था। लेकिन वो एक ऐसा फैक्टर मुझे फील हुआ जिसकी वजह से मुझे आज तक आई फील कि वो एडवर्स एक्सपीरियंस ने शायद, और तो कुछ हो ना हो, एक बंदे की जान बचा ली और मैं एक वसीला बन गया। सही सही। वही बात है ना कि अल्लाह मियाँ ने आपसे कुछ बड़े बड़े काम करवाने होते हैं, किसी की जान बचानी होती है, तो अल्लाह मियाँ आपको इतनी मुश्किलात से गुजारता है ताकि आप उससे रिफाइन होके एक बेहतर इंसान निकलो और बेहतर प्रोफेशनल के तौर पे निकलो। चलो, आई हैव सम फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। तो हम श्योर। वन बाय वन उनके ऊपर जाएंगे। तो आप एक दफा अनमैच्ड किए, भाभी भी हमारी अनमैच्ड की, दोनों आप जी लोग जी। एक दफा अनमैच्ड किए। दूसरे साल आप मैच हुए, उसके एक साल बाद भाभी भी मैच हो। हाँ जी, उन्होंने फिर दूसरे साल अप्लाई नहीं किया था। ठीक है। मतलब जब तो मैं कर रहा था पैसे नहीं थे इतने। सही सही। तो मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हेल्प्ड यू द मोस्ट टू गेट इनटू रेजिडेंसी द सेकंड टाइम? डायरेक्शन। अच्छा। और वो डायरेक्शन किसने दी और क्या थी वो डायरेक्शन? वो डायरेक्शन मुझे मेंटोरशिप से मिली, हम्म। गाइडेंस से मिली, और अपॉर्चुनिटीज मुझे कुछ ऐसी मिली जो आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही। और इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि मेंटरशिप में एग्जैक्टली आपने क्या सीखा था, क्या आपके मेंटर्स ने आपको बताया था ऐसा? मैंने मेंटोरशिप में ये सीखा, छोटी सी एग्जांपल। मुझे जब मैं अप्लाई पहली बार किया तो मुझे ये पता ही नहीं था कि पर्सनल स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। आई वाज जस्ट लाइक इट्स एन एसे, पर्सनल स्टेटमेंट ही है ना, मुश्किल इंग्लिश के वर्ड डाल के लिख ली। लेकिन फिर मुझे दूसरी बार मेरे मेंटोर्स ने बताया कि भाई पर्सनल स्टेटमेंट है क्या। और उस पर्सनल स्टेटमेंट में मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरी मैं कोई मतलब रिटन इंग्लिश में आई एम नॉट दैट गुड। व्हाट आई कैन डू इज आई हैव आइडियाज, जिसको अगर मेरे जहन में आइडियाज आए तो मैं ट्रांसलेट करके एक अच्छा लिखने में मुझे बहुत टाइम लगता है, जो कि किसी बंदे की शायद इंग्लिश मेरे से बेहतर हो तो ना लगे। तो मेरे मेंटोर्स ने मुझे ये कहा कि आप आइडिया से डरे मत, लेट देम फ्लो। तो वो मैंने आइडियाज को फ्लो जब किया तो वो पर्सनल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज बनी कि मुझे इंटरव्यूज में 30% शायद इंटरव्यूज में ने उसका जिक्र किया। वो चीज जिसका मुझे पता ही नहीं था उसमें इतना मतलब फर्क डाला। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो गाइडेंस जो है ना और डायरेक्शन, उसने मेंटोरशिप ने जमीन आसमान का फर्क डाला। आई कंप्लीटली एग्री। अभी हम लोग जो इस साल बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें से आई सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु नीडेड सम काइंड ऑफ हेल्प। तो उसमें अबाउट मोर देन 100 किड्स अप्लाइड, और उनमें से मैंने तकरीबन 25 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, उनके साथ मैं सेशन कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पर्सनल स्टेटमेंट का कितना गलत कॉन्सेप्ट है कि आप मुश्किल इंग्लिश में कोई रंगीन इंग्लिश की ऐसे ऐसे सेंटेंसेस यार जिनका मतलब ही कोई नहीं है। राइट, कोई मतलब ही नहीं है, आपने मुश्किल इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख दिया। मैंने कहा इस सेंटेंस का आप इससे बेहतर एक इजी इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में एक ऐसा सेंटेंस लिखो जिसका कोई मफहूम हो, कोई मतलब हो। आपने दो तीन सेंटेंसेस रंगीन इंग्लिश के लिख दिए हैं जिसका मतलब कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कैसे, लेकिन समहाउ ये कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे पाकिस्तानी आईएमजीज में खास तौर पर कि आपने मुश्किल इंग्लिश की कॉम्प्लिकेटेड सी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है जिसका ना सर होगा, ना पाँव होगा, ना कोई मफहूम होगा, जिसका मैसेज भी कोई नहीं है। लेकिन समहाउ दैट वुड हेल्प यू। नहीं, दैट डज नॉट हेल्प यू। और आपकी इंग्लिश से Right. इंप्रेस होकर आपको कभी कोई रेजिडेंसी नहीं देगा। नहीं नहीं, आपकी वो पर्सनल आप स्टेटमेंट के मतलब से इंप्रेस होकर दे सकते हैं। जाहिर है इंग्लिश आपने इंग्लिश तो नहीं पढ़ानी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि आपने रेजिडेंसी ट्रेनिंग की, भाभी आपसे एक साल जूनियर थी। जी। अच्छा, इस चीज से मैं भी गुजरा हूँ। ठीक है, मेरी वाइफ मुझसे 2 साल पीछे रेजिडेंसी में थी।
So any challenges you faced training as a physician couple together? बिल्कुल। देखें, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि चाहते हुए ना चाहते हुए लोग कंपैरिजन करते हैं। एक ही फील्ड लोग कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि उसमें, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा रेजिडेंट था तो उसको बहुत मुश्किल होती थी। आप अच्छे हों, आप बुरे हों, कंपैरिजन होगा। कपल आप में से एक अच्छा हो, दोनों अच्छे हों, एक बुरा हो, दोनों बुरे हो, कंपैरिजन होगा। एक तो ये। दूसरा ये होता था कि आई स्टिल फील कि मेरी वाइफ का सीवी, जितने मुझे मौके मिले अगर मेरी वाइफ को मिलते, तो शी कुड हैव गॉटन मोर इंटरव्यूज देन मी। बट जब वो रेजिडेंसी में हुई तो बैक ऑफ द माइंड लोग ये बात करते हैं कि यार तुम्हें तो हस्बैंड की वजह से मिली है। तो उसको भी ये चीज़ फील होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी कि यार ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी बात होती है। और दूसरा फिर जो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है वो होता है कि जब दोनों आप रेजिडेंसी कर रहे हो तो बच्चों का के साथ जो मैनेज करना होता है ना, वो ज़ाहिर है आप भी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी तक गुजर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी मतलब उसमें होते हैं, अपने चैलेंजेस हैं। तो ये कुछ चीज़ें। और जो एक चौथी चीज़ जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह के काम हम लोग करते हैं या कोशिश करते हैं करने की, फिर जब फिजिशियन कपल होता है तो उसके लिए टाइम निकालना, काफ़ी अपनी शामत लाने को, जिस तरह की इसके बाद मेरी शामत आएगी। नहीं नहीं, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दैट यार, बिल्कुल। अभी 9 बज गए, मैंने खाना नहीं खाया और मेरा खाने पे मैंने कहा आप लोग खा लो, मैं रात को खा लूंगा। दैट्स द होल थिंग। मेरे बच्चियां भी कहती हैं पापा आप बिजी। मैंने कहा सॉरी बेटा, ये मैच खत्म होने दो, कुछ जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं तो हो जाएंगे, अभी थोड़ा ये इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने कहा ये कर लेते हैं। आई एग्री कि वो होता है। और हमारे ना जब हम लोग ट्रेनिंग में थे दोनों, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो हमारे साइन आउट दो होते थे। एक तो वर्क साइन आउट होता था, ठीक है ये करना है, अब ये करना है। फिर हम होम साइन आउट करते थे, अच्छा ये हो गया, अब अच्छा खाना खा लिया बच्चे, अच्छा नहीं डायपर बदलना है, अच्छा ठीक है और क्या है, दूध। ये मतलब वो डबल साइन आउट हो रहे होते थे, घर का होता था और एक बच्चों का। सही। तो हाउ डू थिंक यू ओवरकेम ऑल दीस चैलेंजेस ट्रेनिंग टुगेदर एज अ फिजिशियन कपल? देखिए जी, एक तो जो लाइफ का वैसे गोल है कि आप कह लें कि बेगम जो कह रही ठीक कह रही है, तो जाहिर है एक तो उस पे कोशिश करते हैं अमल हो जाए। दूसरा, मेरा ख्याल है जो मैंने चीज़ शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया और बाद में रियलाइज़ की कि दोनों फिजिशियंस हैं, एक ही स्पेशलिटी से हैं, एक ही शहर से हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंट खूबियां हैं और डिफरेंट खामियां हैं। एक ही पेशेंट को अगर मैं देख रहा हूँ तो हो सकता है उसको किसी एक खास अंदाज में उसको मैं बहुत अच्छा देख सकूं, एक खास टाइप के पेशेंट को मैं बहुत अच्छा देख सकूं, मेरी वाइफ ना देख सके। एक खास अंदाज के पेशेंट को मेरा वाइफ बहुत अच्छा देख सकेगी और मैं अच्छा नहीं देख सकूंगा। हो सकता है मेरी वाइफ नोट्स मेरे से ज़्यादा अच्छी लिखती हो सकता है जो दूसरी स्पेशलिटी से कंसर्न सर्विस पे इंटरेक्शन मैं अच्छा कर लेता हूँ। तो वो चीज़ जब सीखी, तो एक तो देखें, एक तो होता है ना लोग कंपैरिजन करते हैं, एक आप सबकॉन्शियसली खुद भी करते हैं। तो जब वो चीज़ सीख ली ना कि हर एक इंडिविजुअल है और उसकी खूबियां खामियां हैं, मैं उसको हर चीज़ नहीं सिखा सकता, वो मुझे हर चीज़ नहीं सिखा सकता। तो जब ये सीखना शुरू किया तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो कभी ऐसा हुआ कि जो प्रोफेशनल कोई एरर्स थे या ब्लंडर्स थे या प्रॉब्लम्स थे, तो वो सब आपकी वजह से थे? एटलीस्ट आपको कहा भाभी ने ये सब आपकी वजह से, आप ना होते तो ये ना होता। गई। मेरा ख्याल है प्रोफेशनल, ये बात अक्सर सुनने को मिलती है कि शायद वो उस सॉरी यार, यू डोंट हैव टू आंसर दैट। नहीं ये बड़ा नहीं मुश्किल नहीं नहीं, सवाल है, आई आप विल। कैसे जवाब दोगे? नहीं, उसमें मैं इसलिए दे सकता हूँ कि वो ये कहती है कि जो मेरी एब्सेंस में जितनी वो एक्सेल रेजिडेंसी में कर सकती थी, वो उतना नहीं कर सकी। at the सही। though at the end of the day she was the one who got Alpha Omega Alpha Society जी resident जी, award, and I माशाल्लाह। was not even near that। लेकिन ये बात सच है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे इस स्केड्यूल की वजह से, उसके यहाँ मूव होने की वजह से शी कुड नॉट अटेंड हर ग्रेजुएशन। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं, तो वो हाँ वो अक्सर सुनने को मिलता है। बिल्कुल। सही। तो मुझे ये बताओ आपके, did you face any special challenges, or did you notice that there were any lack of opportunities for you as an IMG in America?
यस एंड नो। यस इसमें कि इवन पाकिस्तान से आप कंपेयर करें तो जो पाकिस्तान के बाहर से ग्रेजुएट आए, आई ऑलवेज फील कि उनके साथ हमारा कोई बिहेवियर पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स का, पीएमडीसी या पीएमसी जो भी उनका, इतना अच्छा नहीं होता था। यूके चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर ग्रेजुएट्स एंड अस। फॉर इंस्टेंस यूके में आप जाते हैं तो आपको फॉरेन ट्रेनिंग नहीं मिलती, आपको जीपी शिप करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट द केस फॉर देयर ग्रेजुएट्स। US में the process is difficult. It's very difficult, but you take the same exams as others do, इनके students, and you get the training. तो ये तो है काफी इसमें अच्छी चीज। जो दूसरी चीज है, जाहिर है दिल करता था कि माउंट साइनाई में, हार्वर्ड, येल में जाएं, लेकिन बीइंग आईएमजीज वो सोच ही नहीं सकते। दूसरी बात जो अभी भी लोगों, बल्कि अब ज्यादा लोगों के जहन में आती है कि आप एप्लीकेशन में यूएस एलओआर्स का रखते ही क्यों है, जब आपको खुद पता है कि अपॉर्चुनिटीज कितनी कम है। आपको पता है कि सिर्फ इलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वरशिप आप खुद हॉस्पिटल्स में देते नहीं हैं। आप कहते हैं जी हिपा इश्यूज हैं, डीओ स्टूडेंट्स ने आना है, कैरेबियंस ने आना है, तो आईएमजीज को कैसे ले लें। तो आप फिर क्यों रिक्वायरमेंट आपने ये रखी हुई है, मतलब रिक्वायरमेंट ज़ाहिर कहते तो नहीं है, लेकिन है तो सही है, आपको भी पता है कि बगैर रिसर्च के, बगैर उसमें किसी को क्या मिलता है। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा फील होता है कि एज एन आईएमजी, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मिल ही नहीं सकती, लेकिन अगर मैंने एज अ साइकाइट्रिस्ट भी, अगर मैंने हार्वर्ड में रेजिडेंसी करनी थी, तो हो सकता है कि मुझे 4 साल एक्स्ट्रा रिसर्च में लगाने पड़ते, और पता नहीं क्या करना पड़ता कि मुझे हार्वर्ड में मिल। तो सही। वो बिल्कुल वो है, उस लिहाज से हमें डिसएडवांटेज है। तो शौक जो था आपका हमेशा से कि मैंने पाकिस्तान में अगर मेडिकल स्कूल में जाना है तो कई में जाना है, और अगर अमेरिका में रेजिडेंसी करनी है तो हार्वर्ड में नहीं करनी नहीं है। नहीं, मुझे वो मुझे ये शौक नहीं था, नहीं नहीं, मुझे अच्छा। हार्वर्ड का शौक नहीं था। मुझे सही। मुझे मुझे ये था, मैं आपको वो बता रहा हूँ ना कि दिल तो आपका ज़ाहिर करता है कि हार्वर्ड, येल, नहीं, देयर इज कोलंबिया नथिंग, जाए। हाँ, देयर इज नथिंग हाँ। रॉन्ग विद दैट कि हम आईएमजीज आते हैं। हम में से कुछ बड़ी अच्छी जगहों से आ रहे हैं, और कुछ लोगों की हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मैं जितनी मेहनत चाहोगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे हम्म। ट्रेनिंग एक अच्छी जगह पे दो। लेकिन इवेंचुअली प्रॉब्लम ये है कि हम आईएमजीज तो हमेशा वही मिलता है जो अमेरिकन ग्रेड्स नहीं जाते, तो जो बच जाता है वो हमारे पास आता है। दैट इज द बिल्कुल। सैड एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट। लेकिन जैसे आपने बोला कि भाई हमारे मुल्क में भी तो ऐसा ही है ना, कि जो बेचारे चाइना से, रशिया से आ रहे हैं, हाँ, उन्हें भी वही मिलता है जो हम लोग छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली उनके साथ मतलब जिस तरह का सलूक होता था, मतलब वो हमें सबको पता है। सही। तो मुझे ये बताओ कि आपने 2012 में सिम से ग्रेजुएट किया, राइट? जी जी। और आपकी रेजिडेंसी कब खत्म हुई? रेजिडेंसी मेरी खत्म हुई 2021 में। अच्छा, 2021 में रेजिडेंसी खत्म हुई। और फिर ये दरमियान में इतना प्रॉब्लम, वीजा, 2-3 दफा आपका वीजा अड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में गया, दिसंबर 2021 में यू केम बैक। नाउ यू हैव बीन वर्किंग एज अटेंडिंग साइकेट्रिस्ट फॉर पास्ट 9 मंथ्स। जी जी। तो 10 साल लग गए यार इस सारे चक्कर में, ट्रेनिंग में, एक दफा मैच जाते हुए, वीजा इतनी दफा फंसा। हाँ, और एक साल हाउस वहाँ- जॉब का भी लगाई, हाउस जॉब भी की। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो ये लुकिंग बैक एट ऑल दैट, डू यू थिंक टुडे इट वाज ऑल वर्थ इट? आई थिंक यस। व्हाई डू यू से दैट? आई थिंक जो खास तौर पे अब, क्योंकि पाकिस्तान में इतना टाइम गुजार के, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जो एज अ फिजिशियन मेरी अप्रोच यहाँ साइकाइट्री में बन गई, वो शायद मैं पाकिस्तान में होता तो ना बन पाती। क्योंकि कुछ बेसिक्स हैं जो कि यहाँ हम सीखते हैं ट्रेनिंग में, जो कि, और मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि शायद उन बेसिक्स की रिक्वायरमेंट भी पाकिस्तान में ना हो। जाहिर है अगर आप इमरजेंसी में 12 घंटे की शिफ्ट में 1000 मरीज, 2000 देखेंगे, तो आप इतना कर भी नहीं सकते, मजबूरियां भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें ट्रेनिंग में मैंने यूएस में सिस्टम में सीख ली हैं, शायद मैं, और मैं साइकाइट्री स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मैं बाकी स्पेशलिटीज़ का नाम मुझे पता है ना, मैं उसमें कमेंट करना चाहता हूँ। तो साइकाइट्री स्पेसिफिक में जिस तरह मैं इंटरवेंशन साइकाइट्री में काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस मैं गेन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं पाकिस्तान में ना कर, क्योंकि पाकिस्तान में वो सही। है ही। सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था, व्हाई इवन ट्रेन इन यूएस, एंड यू पार्शियली आंसर्ड दैट कि जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है वो आपको जो यूएस में अवेलेबल है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जी, एक ये और एक अमेरिकन, बिग वर्ड, अमेरिकन ड्रीम। सही।
सही. Do you think कि अगर यूएस नहीं तो फिर यूएस के बाद which other country in the world has the next best level of training in terms of the quality of training? I would say UK. यूके. अच्छा, सही है. थैंक यू. दूसरा मुझे ये बताओ, तो आपके लिए इट माइट नॉट अप्लाई दैट मच, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान जाते रहे हो, अब तो पाकिस्तान से जाकर उधर रहना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में दोबारा पढ़ना, उससे वैसे ही खौफ आता होगा. लेकिन जब तक जितना टाइम अमेरिका में गुजरा इस दौरान, डिड यू एवर फील होमसिक? इफ यस, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? डेफिनेटली, मतलब होम सिक इन सो मेनी वेज. ज़ाहिर है फैमिली है, उसके अलावा दोस्त आपको याद आते हैं, आपको मतलब एटमॉस्फेयर याद आता है. बहुत ज़्यादा मैं पैट्रियोटिक तो नहीं हूँ, लेकिन 14 अगस्त पे चीज़ें याद, झंडियाँ याद आती हैं, ईद वगैरह पे चीज़ें याद आती हैं. तो बिल्कुल बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हिट करती हैं. सबसे होम ज्यादा सिक, क्या याद आता है पाकिस्तान आई का? वुड से पेरेंट्स. अच्छा, सही है. और आप ओरिजिनली यू आर फ्रॉम लाहौर? हाँ जी, मैं लाहौर से तो हूँ. लाहौर में खाने की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी थी? मैं कहूँगा कि मेरी एक लाहौर में, वैसे तो एक जगह बताना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मॉडल टाउन में एक भैया के कबाब. या दैट्स सो ओवररेटेड. इस दफा मैं खास तौर पे गया हूँ कि यार भैया के कबाब का इतना नाम है, इतना नाम है. मैं गया हूँ उधर, भैया के कबाब मैंने खाए, मैंने कहा ये भैया के कबाब है यार. इट्स लाइक नहीं, सिंपल कबाब है लेकिन बाकी. वो अब उसमें देखना ये है ना कि भैया भी तो कितने हैं, आपने खाए किसके. नहीं नहीं, आई वेंट टू द राइट वन. ये अच्छा अच्छा हम अच्छा. पूछ पूछ के, हम अच्छा जो अच्छा नेटिव्स हैं उन्होंने कहा है कि ये भैया के यही अच्छा 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 ऑथेंटिक है. लेकिन मतलब वो वैसे ही थे जिस तरह कोई आम सीख कबाब होते हैं, लाइक अच्छा उनमें अच्छा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इज देयर समथिंग मोर टू इट? आ, हमें शायद क्योंकि हम शुरू से खाते हैं तो हमें लगता है कि वो जरा छोटे साइज के, उसमें ज्यादा स्मोकी टच होता है. हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद दैट. लेकिन सीख कबाब, जो अच्छे सीख कबाब हैं, वो तो आप कहीं से भी लो तो यू विल गेट दैट, स्पेशली लाहौर में या इस्लामाबाद, मतलब जितने भी पंजाब पूरे में आपको अच्छे सीख कबाब कहीं से भी लो तो आई फील लाइक कि वही टेस्ट था, सिर्फ हाँ बिल्कुल साइज छोटा था और चटनी एक स्पेशल थी उनकी. अच्छा, इंटरेस्टिंग. और भैया के अलावा आपको और कौन सी जगह पता है? मोहम्मदी निहारी, बहुत ज्यादा निहारी अच्छा, का हमें बड़ा शौक है. सही है. खुद भी हम अच्छी, मेरी वाइफ भी अच्छी बना लेती है, हम भी, मैं भी बना लेता हूँ, तो वो मोहम्मदी निहारी का एक बड़ा होता है, मजाक वाली. सही है, सही है. चलो किसी टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपकी निहारी हम ट्राई करें. जरूर इंशाल्लाह. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अब ये देखो, काफी स्ट्रेसफुल मुश्किल जर्नी था, राइट? 10 साल का जो आपके रेजिडेंसी एक दफा नहीं मिली, अनमैच्ड हुए, भाभी को भी नहीं मिली, फिर उन्होंने 2 साल बाद अप्लाई किया, आपने 1 साल बाद अप्लाई की, 3 दफा वीजा फंसा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल इश्यूज, इतने सारे. तो व्हाट डू यू थिंक दैट हेल्प यू द मोस्ट इन योर जर्नी, इन योर एंटायर जर्नी इन पास्ट 10 years? आई थिंक persistence and perseverance. Sahi, sahi. And what hindered you the most? If there was something that you think, if you didn't have that, तो इतनी मुश्किलात शायद कम या कम आती मुश्किलात. I think to some extent personal arrogance in some ways I अच्छा. felt initially. जिसको, जिस तरह मैंने बताया ना कि मैं एज अ पर्सन जो ग्रो किया हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो एक होता है कि कोई आपको कहे कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप छोड़ दो. एक होता है कि आप सीखो कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है. तो मुझे Give ऐसा me an फील होता है. example. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं आपको बताया ना कि टॉप ऑफ द क्लास जीपीएस में चल रहा हूँ, जीसी में आ गया हूँ, तो वो एक, जिसे कहते हैं ना, आप अपना बर्थ राइट समझ लेते हैं कि यार जीसी में आ गया हूँ, उसके बाद किंग एडवर्ड में, उसके बाद यूएसएमएलई करके आएंगे इधर. तो फिर जब आप आते हैं कि यार ये बर्थ राइट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, और जरूरी नहीं कि आप हाँ. वर्क हार्ड करो भी तो आपको मिले. तो वो उस तरह की चीजों, जिसे कहते हैं ना, जिस तरह हजरत अली का कॉल है कि अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना. तो वो ऐसा फील होता है कि जो कभी कभार आपको चीज नहीं मिलती या आपको बहुत मेहनत करके मिलती है, तो आपको अंदाजा होता है कि फिर वो चीज आप डिजर्व करते थे या नहीं करते थे. Interesting. Interesting. सही, सही, सही. तो you think you became more humble because of your failures or यस your यस stressors? एब्सोल्युटली. सही. ठीक है, ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि what's been the biggest high, biggest happiness of your life so far? जब आयशा पैदा हुई थी मेरी बेटी. MashaAllah, very nice. And what's been the biggest low of your life? आई थिंक बिगेस्ट लो वुड स्टिल बी uh, going on match that first time. अच्छा, सही, सही. Both me and my wife, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अच्छा, क्योंकि दोनों का. हाँ, दोनों ठीक का. है.
सही। एंड मैं पूछना, अगला क्वेश्चन मैंने यही करना था कि हाउ डिड यू ओवरकम दैट, बट यू एक्सप्लेन दैट ऑलरेडी। अब मुझे ये बताओ, पिछले 10 साल का ये जितना भी जर्नी था आपका, राइट, और उससे पहले का भी मेडिकल स्कूल का भी, आप यू वांटेड टू गो इनटू यू weren't एबल टू, एनी रिग्रेट्स इन दिस जर्नी कि काश ये ना होता यार, काश मैं ये चीज ना करता, काश ये मेरी इस लाइफ में इस चीज से ना गुजरता, ठीक है मैंने इससे लर्न किया जो भी था, लेकिन काश ये ना होता, तो व्हाट वुड दैट रिग्रेट बी? आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि पर्सनल लाइफ में द वे मुझे लोगों के साथ इन द पास्ट बिहेव करना चाहिए था, जिसमें बहुत क्लोज लोग भी हैं, शायद जो हम्बलिंग एक्सपीरियंस जिन्होंने मुझे ज़्यादा हम्बल किया, अगर आज जो मैं हूँ, जो मेरा एक सोचने का तरीका है, वो कुछ साल पहले होता, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप्स में आप करते हैं जिसमें आपको रिग्रेट होता है, वो शायद मैं ना करता। सही। सो यू आर मोर रिफाइंड एंड थॉटफुल in your thought process today, or past में you were probably immature and didn't act the way बिल्कुल। you would have liked। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप कह रहे थे आपके स्कोर्स कम थे, इतने बुरे नहीं थे यार, मतलब मेरा 220 था और स्टेप 1 में, और 213 था स्टेप 2 सीके में, और सीएस में मेरी अटेम्प्ट थी, तो हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं, हम सारे मुश्किलात से होकर यहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन हाउ डिड यू डू यू थिंक हाउ वर यू एबल टू ओवरकम योर रिलेटिवली लो स्कोर इन यूएसएमएल स्टेप 1? एक तो यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हम्म। उसके लिए मुझे मतलब काफ़ी हेल्प हुई और अच्छा एक्सपीरियंस मिला। दूसरा, मैं फिर वही कहूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ईरा's पिक्चर, द फोकस ऑन ईरा सीवी, कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज, रिफाइंड एंड पर्सनल स्टेटमेंट, एंड स्टेप 3। सो ये सारी चीज़ें मिल के, नॉट वन सिंगल थिंग, बट ये सारी चीज़ें मिल के उसको इट हेल्प्ड। सही। सही। तो मुझे ये बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि डी मतलब बीइंग बोथ अ फिजिशियन कपल विद 3 माशाल्लाह डॉटर्स, do you feel like you're able to give enough time to your family, your children? I think I am, अल्हम्दुलिल्लाह। साइकाइट्री में द एडवांटेजेस के शायद आप पर पेशेंट तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ओवरऑल उस तरह के शायद बहुत हेक्टिक टाइमिंग्स नहीं हैं। तो आई डू फील के यस, सही। शायद और करने का दिल चाहता है, लेकिन एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट वी आर। भाभी की रेजिडेंसी होगी? हाँ जी, उसकी भी माशाल्लाह अब वो मैटरनिटी लीव पे है, उसकी जॉब अच्छा, यहीं स्टार्ट हो गई है। चलो, वेरी नाइस। Did you have any financial limitations in early years that restricted you जब आप मैथ्स वगैरह हाँ, कर रहे थे? मतलब बिल्कुल, मतलब आई वाज ऑफर्ड सम रिसर्च पोजीशंस इनिशियली, अच्छा। लेकिन था कि रेजिडेंसी लेनी है तो कुछ फाइनेंशियल उसमें प्रॉब्लम्स थी, वो नहीं मैं कर सका, तो उसकी वजह से एक वो अच्छा, वो पूरा। अनपेड रिसर्च थी? हाँ जी, अनपेड अच्छा, अच्छा। रिसर्च थी। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते तो यू वुड हैव डन जी अ लॉट मोर रिसर्च एंड देन जी, अप्लाइड और फॉर द उसमें मैच। फिर उससे इवन उससे पहले थोड़ा सा electives के लिए प्रॉपरली ना आ पाना, क्योंकि मतलब वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। हाँ, इलेक्टिव्स भी तो उनकी बड़ी बड़ी फीस है, $500 से $5000 तक पर मंथ जी जी बिल्कुल, उस और यूनिवर्सिटी उस टाइम चार्ज। तो यही एक जहन में होता था कि यार अब वो पहले ही फीस भी दे रहे हैं, तो अब उनसे मांगते हुए भी शर्म आएगी। तो हम्म। इसलिए हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत मतलब अगर फाइनेंशियल ज्यादा मतलब मुझे बैकिंग होती तो और चीजें बेहतर हो जाती। इवन जब मैं मतलब ये दोनों बार, खासतौर पे जब पहली बार फंसा हूँ, तो उस वक्त भी कुछ फाइनेंशियल हमें प्रॉब्लम्स आई हैं कि मतलब एक जब आपका सिलसिला शुरू हो गया, आपको पता है यहाँ तो डे केयर की फीस ही इतनी है। हम्म। तो वो सारी चीजें कर कर आके, अगर कोई नहीं जानता तो उसे बताओ कितनी है? डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर लिविंग, डे केयर फॉर वन किड anywhere from $1,000 to $3,000 per month, again depending upon where you are living. तो एक रेजिडेंट सैलरी चल जाती थी, आप मतलब मेरी या मेरी बेगम की एक बंदे की सैलरी सिर्फ चाइल्ड केयर पे जाती थी। अच्छा, तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाउ वर योर कम्युनिकेशन स्किल्स बिफोर हैंड? व्हाट आई मीन इज लाइक, डिड यू एवर हैव एनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश? इफ यस, हाउ डिड यू ओवरकम देम? uh, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, क्योंकि सही है। मैं मतलब अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल से शुरू से था, और लाहौर में क्योंकि मतलब बॉर्न एंड रेस था, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे।
लेकिन जो थोड़े बहुत मुझे थे वो मतलब मैं उसको ओवरकम करने के लिए जो मैंने शुरू में चीज़ें की, मैं बहुत ज़्यादा मतलब टीवी शोज देखता था यूएस, क्योंकि अच्छा, हमेशा मुझे एक फीलिंग आती है कि मूवीज दे आर नॉट गुड टीचर्स इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। जो कल्चर आपने सीखना है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना उसका ताल्लुक कल्चर से है, जो आपने कल्चर और लैंग्वेज सीखनी है वो टीवी शोज से, तो उस पे उसने मुझे काफ़ी हेल्प की। और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो, और जब मैंने लोगों को देखा जो बहुत अच्छे पाकिस्तानी इंडियन लोग सेटल थे, उनका जो बोलने का इंग्लिश का अंदाज था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि दे नो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो आप आहिस्ता बोलें और क्लियर बोलें, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी कि आप उस तरह उसको इनंसिएट ना भी कर पा रहे हो, तो उनको समझ आ जाए। सही। मतलब you don't need to change your accent. आप बिल्कुल, सिर्फ अपनी आप जो आप बोल रहे हो उसको just talk a little slowly ताकि लोगों को आपकी बात समझ आ जाए। ठीक है। बिल्कुल। दूसरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो बहुत से लोग आते हैं जो कि फाइनेंशियली जो इतने ब्लेस्ड नहीं होते, और वो लोग आते हैं और वो प्लानिंग करना चाह रहे होते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल आवर इंटरव्यू सीरीज के आई आस्क व्हाट इज द नेशन वाइड सैलरी रेंज इन योर स्पेशलिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्टेड। Nationwide psychiatry में it ranges from, I would say, 220 to 400। ठीक है। तो उस पे जाती है, और उसमें फैक्टर्स जो हैं, लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, एकेडमिक वर्सेस कम्युनिटी हॉस्पिटल बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसमें फिर सेकंड ये फैक्टर है कि आप किस किस्म की जॉब करना चाह रहे हैं, इन पेशेंट वर्सेस आउट पेशेंट। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल स्ट्रेट 9 to 5 या 1 week on 1 week off, यू कैन ऑलवेज मेक मोर। सही। चलो, थैंक यू। नाउ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, योर बिगेस्ट चैलेंज दैट यू ओवरकेम इन दिस एंटायर जर्नी, पिछले 10 साल का जो भी आपने बताया, इवन बिफोर दैट 15 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जो दैट यू ओवरकेम? सबसे बड़ा चैलेंज एज अ पर्सन ग्रो करना। अच्छा, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। सही। वाज इट पेनफुल टू एक्सेप्ट कि जो आप सोचते थे सारी जिंदगी कि ये तरीका है, मैं बचपन में जवानी में इन इन बिलीव्स को लेके चलता आया हूँ, अब ये देखना है कि नहीं, दे वर ऑल रॉन्ग, एंड इट्स अ लिटिल ह्यूमिलिएटिंग, यू नो, कि सारी जिंदगी मैं जिस चीज को सोचता आया था वो सब झूठ थी, और यू नो, इन ऑर्डर टू बी मैच्योर आई हैव टू एक्सेप्ट कि आई वाज रॉन्ग, राइट? दैट इज द ओनली वे यू कैन इम्प्रूव। यस, इट इज पेनफुल। और लेकिन उसमें यह है कि पेनफुल, जितना पेनफुल है उतना ही आपको, इट इज ऑल्सो, इट लिबरेट्स यू। Interesting. Yeah, you're right. It is rewarding and liberating at the same time. Very nice. Acha, if you have to do this all over again, would you do anything different? I would do it with guidance from the day one, with proper Acha, guidance. you will reach out, you will seek mentorship from day one. Yes. That is very helpful. I hope कि जो लोग अभी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो they make an effort to, you know, reach out and find mentors who can guide them from day one. Last question मेरा आपसे ये है कि any advice for people in your shoes 10-15 years ago, अगर कोई इस वक्त सिम्स में बैठा बच्चा मेडिकल स्कूल में डॉक्टर अहमद रेहान खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या अगर अपने आप को मैसेज देना चाहें पास्ट में जाके? नेवर लूज होप। पहले तो ये है कि सोच समझ के इस जर्नी में दाखिल हो, लेकिन एक बार अगर सोच लिया है कि ये करना है तो फिर डट जाए। सही। फिर आप, वो बर्निंग बोट्स वाली बात है, चाहे उधार लेना पड़े, आपको स्कॉलरशिप कहीं से मिले, जो भी मिले, जब एक बार सोच लिया है, अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले ली है, तो फिर जो मुश्किलात रास्ते में आती हैं उनसे फिर डिसअपॉइंट ना हो, हर मुश्किल को लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएं और आगे चलते जाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार, it was very very nice interviewing you. I'm glad that we did that. हम पिछले 3-4 हफ्ते से we have been trying to do it, लेकिन I'm so glad we did it. I learned a lot from this interview, and I'm sure all of you learned a lot as well. If you did, please like this video, subscribe to the channel, and share it with others. And like we always say, never give up, never lose hope. Thank you. Assalamu alaikum.